We three people who had very different journeys in our UPSC attempts. किस तरह से जो यूपीएससी का कोर है कि सेल्फ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उससे कैसे कोई सीख सके। आई थिंक ये हमारा पर्पस जो हमने डिसाइड भी किया था, एंड आई थिंक वो अगर हम कर पाए तो पेपर छूटना है, कैसे छूटना है, सब कुछ प्रिपेयर करके जाओ। आपका कितने बजे आप किस फेज पे रहोगे पेपर में, आई थिंक इसका एक बहुत सॉलिड प्लानिंग बहुत करके जाना जरूरी है। तो 2 मिनट तो मेरे को फिगर कंटेंट पढ़ने में ही चले गए, मैं आपसे नहीं लिख पाया। आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बगल में मेरे रूम में मेरे को इनविजिबली बैठ के देख रहे हैं, विल दे बी प्राउड ऑफ मी और विल दे बी नॉट प्राउड ऑफ मी। रिजल्ट्स क्या होगा अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं है। लोग पूछते हैं कि भैया डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई जस्ट से वन थिंग, आई थिंक आई विल पैटर्न दिस स्टेटमेंट, डोंट चेज मोटिवेशन, चेज डिसिप्लिन। यार मोटिवेशन के पीछे मत भागो, जस्ट डिसिप्लिन रहो, काम करते रहो, रिजल्ट जिस दिन आना है आ जाएगा। हम इस एज में एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, कहाँ तो कोई शादियां कर रहा है, कोई अब्रॉड शिफ्ट हुआ है, कोई लाइफस्टाइल जी रहा है अपनी अपने तरीके से, लोग कमा रहे हैं, एंड हियर वी आर इन अ रूम सिटिंग एंड कॉन्शियसली टेक दैट कॉल कि मैं उस टाइम पे अपने आप को एंड कर रहा हूँ। लाइक अपनी हदें डिफाइन करो अपने हिसाब से एंड बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ। सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली बंद करना है अगर हम, या फिर प्रोडक्टिवली यूज करना है। यार नहीं हो पाता है तो बंद कर दो, कहीं और Yes. लेके आओ, है ना। Yes. जैसे नहीं हो पाता था, मतलब ऑनेस्ट कॉल लो ना यार, Honest call लो। कब हमें ब्रेक लेना है, कब हमें दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, और एनीथिंग दैट वी वांट टू डू टू फ्रेश आवर माइंड। 3 completely different number of attempts, 3 completely different strategies. एंड दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं तो कॉन्शियसली उनको काटने पड़ेंगे। So, hello everyone. I hope everyone is doing good, whoever is watching this video. So, today we are 3 people coming together to contribute something for the aspirant community. We wanted to give back in the terms which we have gained from the experience of our UPSC journeys preparation. So, today here I am, Raghav. I have secured rank 4 in this year's civil service examination. We have with me Dhwanish, rank 108, and we have with us Dishant, rank 19 in this year's UPSC exam. So this is an initiative which was mutually thought about by the 3 of us simultaneously. So by this initiative, with what we have thought is कि we'll curate something in terms of strategy, in terms of sources used, in terms of the answer writing and every FAQs, frequently asked questions, for the mains examination. So I believe it is nearly less than 2 months away. So we thought, why not come up with a interactive session of our own where we 3 people who had very different journeys in our UPSC attempts, 3 completely different number of attempts, 3 completely different strategies. So we'll be talking about the GS specifically today, and we'll be starting from GS1 and we'll subsequently go to GS number 4. So hello guys, welcome to this. So how are you feeling today? Very excited to share the insights, and I'm very happy that we are doing it. Specifically because we've been discussing it for so long, and I think this kind of conversation and the kind of information that we wanted to share with aspirants is particularly important in this phase of preparation between prelims and mains. So I hope with whatever we discuss today, we are able to give some value to the aspirants, not only who are writing mains this year, but who will hopefully write mains in subsequent years. So very excited. Dishant bhai, aap? राइट। सो द पर्पस हियर इज टू सिंप्लीफाई रादर देन कॉम्प्लिकेट, है ना। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज रही है, हमने जो अक्रॉस फेलियर्स या वो चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर करके जो सीखा है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है ये वर्क कर रहा है, और ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ दैट अब हमें बताने का वो मन कर रहा है कि आप ये कर सकते हो। यूपीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के मेंस में, जैसे आपका जो मेंस का स्कोर रहा है जीएस का, हम सब का स्पेसिफिक पेपर्स में अच्छा स्कोर रहा है, तो उन चीज़ों को कैसे, उन चीज़ों का क्रक्स हम बता पाए, सिंप्लीफाई करके बता पाए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ, इसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई कोचिंग का कोई ग्रुप्स या ये सब ज्वाइन करने का ज़रूरत पड़ेगा कोर्सेज को। बस किस तरह से जो यूपीएससी का कोर है कि सेल्फ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उससे कैसे कोई सीख सके। आई थिंक ये हमारा पर्पस जो हमने डिसाइड भी किया था, एंड आई थिंक वो अगर हम कर पाए तो वील ऑल्सो बी वेरी ग्रेटफुल के बिकॉज ऑफ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम अदर पीपल, वी आर नाउ एबल टू गिव इट बैक। Very nice. So we'll be starting with GS1 and 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। पहला होगा सोर्सेस, दूसरा होगा कि स्ट्रैटेजी, हाउ टू गो अबाउट दैट सब्जेक्ट इन इट्स एंटायरिटी, जिसके अंदर भी सब सब्जेक्ट्स हैं, एंड फिर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट राइटिंग की बात हम लोग करेंगे। सो GS1 का पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर। सो ध्वनिश, आप सोर्सेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हिस्ट्री GS1? Right. So when it comes to sources for GS1 altogether, so we know for a fact कि उसमें
there are 3 to 4 subjects in GS1, right? There is history, then there is geography, and you have society. Broadly, you have these 3 subjects in GS1. Coming to history sources per se, my own strategy and my own sources for history specifically have kind of been unconventional. Like, for example, I never read Spectrum, but I still managed to cover the modern history part. So on that front, I would say कि history के लिए मेरे sources थोड़े unconventional रहे हैं. All I did was old NCRTs and new NCRTs specifically, and then I had a very thorough analysis of previous year questions. So last 10-15 years के questions for history specifically, I had very elaborate notes on them. Very elaborate model answers on them as well, and I would revise them religiously. Besides that, I had old NCRTs and new NCRTs which I would focus on. So that has been broadly my source for history. Coming to other subject, which is geography. So geography, I would say highly, when it comes to mains, it highly as per me, uska source highly overlaps with what we do for prelims also, which is the NCRT that we do, class 11th NCRT, and probably some chapters of GC Leong. इसके अलावा we are left with some mapping issues, but that broadly does not really come in mains part. So for geography also, I had like 2 sources primarily, that is GC Leong and NCRT class 11th. Beyond this, again, I had a very thorough analysis of PYQs, and I would also make religious notes on them, elaborate notes on them, and model answers prepared for at least 5 to 10 years of geography questions. Society pe, yes, you kind of have to focus on it because society A is dynamic, and B, I think based on the nature of questions and how it is evolving through the years in GS1 specifically, I would say that it is important that you at least have good notes, good examples, good keywords to add for certain things that are mentioned in the syllabus, like globalization है, urbanization है, या फिर हम न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिलीज की बात करते हैं, या फिर जेंडर रोल्स की बात करते हैं सोसाइटी में GS1 में, तो उस पर मुझे लगता है कि यू नीड टू हैव गुड एग्जाम्पल्स ऑन देम, good quotations on them. So what I did for every GS paper this year was I curated about 100-page micro notes for each paper, and GS1 के लिए भी I did that only. And उसमें भी 100-page के micro notes में जो society के मेरे 30-35 page के notes थे, जिसमें I had compiled quotations for each of the theme that was repeated in the last 10 years for GS1 society. Quotations के बाद I had important examples that could be put in, best practices that could be put in across the world, जो कि मैं examples के through add कर सकता हूँ. And then newspapers में, editorials में, if I'm finding something very relevant or something catchy, then that is something that I would also add in my micro notes. So that would probably give me some edge in the examination. So that has broadly been my source for GS. Dishant, you would like to add on something? Yes, so I felt that in some subjects, for example, like in Dwanish, I would also want you to add, because you've scored exceptionally well in GS1. So what was that particular aspect of your notes that you feel that you did differently from us? So I think fundamentally what I felt for GS1 was that it is important that you open a lot many dimensions in GS1. I think that is what is fundamentally rewarded in the paper as well. At least that's what my idea was after analyzing previous year topper copies. So when I was preparing my notes also, I would make it a point that I am essentially writing both sides of the coin in my notes. Like अगर मैं globalization पे notes बना रहा हूँ, तो pros and cons के मेरे पास equally wealthy points होने चाहिए, 5-7 points मेरे पास होने चाहिए, so that even when paper में critically analyze करने को कहा गया globalization को, जो कि I think उससे related एक question था भी इस बार, 9th या 10th question था, if I'm remembering it correctly. तो even though if I'm critically analyzing it, but towards the end I'm also writing 2-3 points for globalization. I think उसमें you're probably collecting half a mark only or 1 mark only, but that kind of gives one perspective to the examiner कि yes, I have done my part comprehensively. कि मेरा आंसर पढ़ने के बाद व्यूज या एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से द एग्जामिनर शुड फील फुलफिल्ड, और वो मैं रेप्लिकेट करता था अपने नोट्स में भी फॉर एवरी टॉपिक दैट आई वाज मेकिंग नोट्स ऑन. जो नोट्स की बात थी, तो व्हाट आई फॉलोड वाज महक जैन मैम जो टॉपर रहे थे, उनके आर्ट एंड कल्चर के एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मुझे बहुत
क्रिस्प लगे थे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। एंड प्लस कंबाइन दैट विथ प्रीलिम्स में हम जो कुछ कुछ फैक्ट शीट्स बनाते हैं, जैसे डायनेस्टीज हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, तो वो शीट्स को फिर मैंने रिवाइज किया और वो महक जैन मैम के कंटेंट को एज अ फिलर यूज़ किया। तो हिस्ट्री को मैंने थोड़ा सा कम वेटेज दिया। एंड ज्योग्राफी में जैसे इन्होंने बताया अगेन एनसीईआरटी डायग्राम्स कंपाइल्ड। एंड सोसाइटी में भी जो कलेक्टिव जो नोट्स थे, बट अगेन सोसाइटी में आई थिंक रोल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आंसर राइटिंग में कवर करेंगे। तो मेरा भी ब्रॉडली यही रहा है चीज़ें। बट अगेन कंपेयर टू जितना ज़्यादा वॉल्यूम है GS1 का, उससे तो ज़्यादा ही शॉर्टन करके रखा था मैंने, बिकॉज मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एक सवाल आने वाला है, हम कितना ही लड़ लेंगे वो एक सवाल के लिए। तो उसको अगर हम इग्नोर भी कर सके तो ठीक है, बुरा नहीं है, बट अगर कवर करना है तो जैसे श्रेयंश कुमट सर थे, उनके पोस्ट इंडिपेंडेंस के 6-7 पेज के नोट्स थे, वो हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जो है कोई भी उस तरह के टॉपर नोट्स उठा सकते हो जिसमें बेसिक आइडियाज़ कि अमेरिकन वॉर, फ्रेंच वॉर, कोलोनियलिज्म, ऐसे बेसिक ब्रॉड एरियाज कवर हो जाए। इवन यूट्यूब पे कुछ वीडियोस Yes. हैं, वो देख सकते हो आप। राइट। तो उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि GS1 में ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सको अपनी कलेक्टिव नॉलेज से। नोट्स, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। So, whatever both the toppers have spoken, in addition to that, I wanted to share my bit कि ये दिखाना था कि there is no one way to do any subject. हम 3 लोग हैं, हम तीनों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ की, तीनों ने अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में मैंने कुछ कोचिंग्स के भी नोट्स यूज़ किए। सो मैं उनका नाम लूँगा, बट इट इज़ नाइदर प्रमोशनल नॉर रिकमेंडेड इन एनी वे, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन एंड डिस्क्लेमर। सो मैंने स्मृति शाह मैम के नोट्स अभी यूज़ किए थे, कॉन्कर का मैंने मेंस का नोट्स यूज़ किया था। फिर उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से एक्सटेंसिव कीवर्ड्स बनवाए थे, उसको प्रॉम्प्ट अच्छे से दे दे के कि भाई अभी गिवन द ट्रेंड जो आप PYQ से देख पा रहे हो या फिर जो अभी ग्लोबली चल रहा है। आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मैं ट्विटर की एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सो देर इज़ अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड जोनाथन हाइट। ही इज़ अ US बेस्ड फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। सो मैं उनके एस्पेक्ट्स को भी अपने सोसाइटी के आंसर में डालता था। आई वॉज वेरी फ्रीक्वेंट एंड थरो विथ न्यूज़पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कोई एक अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी में, कोई भी रेलिवेंट काम हो रहा है, या फिर द एथिक्स के भी जो मैं एग्जाम्पल कलेक्ट कर रहा था बेटर इंडिया वगैरह से। सो इफ दैट फिट्स इन सोसाइटी, व्हाई शुड आई नॉट पुट इट देयर। सो GS इज ऑल अबाउट, आई थिंक, आप कहाँ का कंटेंट कहाँ फिट करके आ पा रहे हो। इंटरलिंकेजेस आप जितने बेहतर तरीके से कर पाओगे, दैट विल बी वर्थ इट। बट राघव, एक बात बताओ, जैसे चैट जीपीटी की बात करी आपने और ये इन चीज़ों की बात करी, अगर 60 डेज में किसी को ये चीज़ करनी है, नोट्स कंपाइल करने हैं, लाइक अक्रॉस अगर 1 साल का वो प्रिपरेशन साइकिल है तो ठीक है, हम रेफर कर सकते हैं। 60 डेज में इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? और अगर चैट जीपीटी यूज़ करना है अभी कुछ कुछ चीज़ें कंपाइल करने के लिए, बी इट फॉर ऑप्शनल और GS, तो आप कैसे उसको और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते थे? See, I had the same dilemma which you asked. Thank you for your question. So, मेरे भी जो मेंस के पहले जो नोट्स थे, मेरे कोर नोट्स थे, वो रजिस्टर भरे हुए एक पूरे मोटे नोट्स थे। सो मेंस से लेके प्रीलिम से लेके जो मेंस तक का मेरा पीरियड था, वो मेरे कोर नोट्स को शॉर्टन और सिंप्लीफाई करने में ही गया। सो आई वाज मेकिंग वेरी क्रिस्प नोट्स आउट ऑफ द कोर नोट्स विच आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। चैट जीपीटी की जहाँ तक आपने बात करी, चैट जीपीटी आई थिंक इज़ अ टूल इन आवर हैंड्स जो कि पहले के समय में अवेलेबल नहीं था। चैट जीपीटी इज मेकिंग आवर वर्क्स इवन ईजियर, नॉट जस्ट चैट जीपीटी, अदर टूल्स लाइक जेमिनाई हो गए या फिर क्लॉड हो गया, जो आज के दिन में काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। सो विल टॉक इन अ सेपरेट सेक्शन कि कैसे आप AI टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के। दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक। सो व्हाट आई वाज सेइंग इन दैट प्रीवियस डिस्कशन कि हिस्ट्री के लिए भी मैंने कुछ सोर्सेज अलग से रेफर किए थे। फॉर एग्जांपल मार्केट में मुझे लेवल अप IAS का कोचिंग का नोट्स मिल गया, तो उसमें सर हैड वेरी डेलिबरेटली कवर्ड द हिस्ट्री के नोट, जैसे भक्ति मूवमेंट है या फिर जो भी सारे रिसोर्सेज है, उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम्पी के बारे में, अगर विजयनगर किंगडम की बात करें तो बहुत अच्छे से कवर किया था। सो आई थिंक अगर आप इंटरेस्ट लेके चीज़ों को अच्छे से कंपाइल करने की कोशिश करो तो दैट विल बी इवन फ्रूटफुल। सो आई थिंक ज्योग्राफी में हाँ, बहुत NCERTs के बियॉन्ड नहीं किया था, PYQs को ही अपना बेस मटेरियल बनाया था इन एडिशन टू NCERTs एंड GC Leong। सो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, आई वुड लाइक टू कम टू द टॉपिक कि भाई आंसर राइटिंग कब से शुरू करें, कितना करें और कैसे करें कि मेथ्स में मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाए। धोनिश, वुड यू बिगिन ऑन दिस? So again, probably I probably have a different view on answer writing, because when we were preparing together also, then also
in terms of answer writing, our approaches were fundamentally different. My approach with answer writing is that the more I write, the better clarity I have in my mind, and the better prepared I am for war. So I would write extensively. Like I would write at least 10, 12 answers every day, and beyond that, I would also have full 3 hour paper also. So I would say in terms of answer writing, I did cover a lot of breadth of the syllabus just by how much I wrote. Because I was writing probably 10 questions a day, so that naturally covers a lot of types of questions, right? And that basically prepares me for what is going to come in the exam. Even if there are any uncertainties or any new things, then I feel better prepared if I've already practiced that at my home. Now, when to start answer writing? I fundamentally felt that answer writing probably could be started after completing the syllabus once. And when I say completing the syllabus once, I don't mean to say that you have to comprehensively cover everything and then start answer writing. Whatever the standard books are, whatever the boundaries that you've set for yourself when it comes to syllabus definition for that particular paper, once you've done that, like for example, for me, it was old NCRTs and new NCRTs. Once I felt that I've covered them, then I started answer writing, probably in November, December. If I were to like appear for 2024 or 2025 prelims, then prelims is in May, but I would start answer writing in November, December, January. That was my three months of hardcore answer writing. And of course, this intensity of answer writing increases between prelims and mains. Then you're probably focusing more on value addition. You're focusing more on timing. You're focusing more on structuring. So those 2.5 months are focused on refining your answers. It's less about collating information, I feel, but more about refining the answer, more about putting whatever knowledge you've accumulated over the last 15-20 months. And what did you specifically do for GS1? So as I said, I first of all tried to write as many answers as I could, and that was more focused on PYQs. Beyond that, I refer to topper copies extensively. And when I said refer to topper copies, the method that I used to use was I would basically write 5 questions from topper copies and then compare my answers with them. And I would make it the ardent habit of comparing my answers with them, and I would be very harsh with my own scrutiny. Right. If they have covered any one dimension, I should have covered that dimension in my answer. And the point is, because the level of competition is increasing, you mentioned about AI, we know for a fact that there is a lot of information coming in the market also. So because the information is getting democratized, you have tools, powerful tools at your disposal. So I believe information is not really a problem anymore. You basically have to add dimensions analysis to your answer. That is going to give you like critical edge over others. So my focus was if the topper has covered like 10 dimensions, then this year I'm going to open 12 dimensions in that answer. All right. दिशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? राइट. सो आंसर राइटिंग में मुझे भी स्पेसिफिकली GS1 की अगर बात करें, सो आई फाउंड दैट every section had a different approach. If I talk about geography, then my focus was more on examples and diagrams. Yes. If there is a geography question, at least 2, minimum 2, maximum 3-4 diagrams are non-negotiable. Okay. Then it comes to the fact key examples. If I've written a point, if I'm जैसे इस साल का जो question था geophysical movements का ही question था. Yes. Plate tectonics related question. तो I made 3-4 diagrams in that. I explained कि यहाँ पे ये plate tectonics यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है. तो वो मैंने पहले से compile करके रखा था. And I think that goes for all of those questions. तो geography में ये focus था. सोसाइटी में जो फोकस था वो ये था कि इंट्रोडक्शन मेरा कोट्स से स्टार्ट होगा या कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो देना ही है थोड़ा सा, बट कोई कंटेम्प्रेरी एग्जांपल अगर उससे मैच हो रहा है रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में तो वो देना है. एंड इन कोट्स, सो आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक. अनिमेश प्रधान सर जो टॉपर थे, वो इस तरह से जनरलाइज्ड कोट्स बहुत कलेक्ट करते थे. कुछ उनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो शायद उसके भी कोट्स यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ that is valid for even social justice. So he used to make a quote like, in the symphony of development, health plays the transformative melody. Wow. So beautiful Nice. quote. Very nice. Nice. In the symphony of development, education plays the transformative melody. So I think collecting such filler materials, filler quotes for society, and then what he added was that multi-dimensional points in society. I think it is very important. Pros, cons.
so that you give a very well rounded answer. And then again, every aspect should contain every point. For example, if there are 5 points under a subheading, then 4 of them should ideally contain an example or a data to back that. So society, broadly, this was the approach. And I also feel that introduction and before your main heading, in society and even in history, you can add another dimension. Yes. In history, you can add a timeline, you can add a map also. And in society, you can add some vicious cycle, virtuous cycle, or a flowchart that explains the context behind that topic. For example, rising use of AI in education is causing problems. So you can explain how AI is first manifested in education, and then what are the problems. That will be your main heading. So I think that was my approach in breaking down those answers. If So- you would like to add anything. Yes, yes. So here I would like to talk on 3 aspects. Key number of tests and amount of answer writing. Second would be dimensions, कैसे खोले कैसे बढ़ाएं. And तीसरा value addition कहाँ से करें कितना करें. So number of test is a very controversial topic. कितना answers लिखना है. Dhonish is somebody who has written so many answers. Dishant, I think आप हम दोनों के mid point में lie करते हो. Right, right. And I am someone who wrote minimal amount of answer this time because out of the fact कि 2024 की मेरी drill पूरी हो चुकी थी. I had missed the cutoff for last year's exam very narrowly, so I knew within me कि भाई answer writing is not an issue for me anymore. Completion within time is not a challenge for me anymore. मेरे को बस अच्छे quality के answers लिखने because the marks I got in my 24 attempt were average. So I think it ultimately boils down to your own level of preparation कि भाई आपको कहाँ कमी है और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको किस लेवल पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. कमिंग टू द सेकंड टॉपिक विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि डायमेंशन, जैसा धोनीश ने बोला खोलो, दिशांत आपने भी बोला डायमेंशन खोलो. सो 10 मार्कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 डायमेंशन तो क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं. उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि टॉपिक को हल्का सा एक्सप्लेन कर दें. फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स की आपने क्वेश्चन की बात करी, सो हम लोग ब्रीफली क्वेश्चन का इंट्रो देने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा 1 उंगली जितना स्पेस में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है, किसने दी थी थ्योरी, किस समय आई थी और इसका क्या इम्पैक्ट रहा था. उसके बाद अगर सोसाइटी का क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग कोई चैलेंज अगर पूछा गया, रीजनलिज्म पूछा, तो हम लोग उसमें वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं कि सरकार को, समाज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एनजीओस को क्या करना चाहिए इस केस में. हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश किसी स्कीम में बहुत अच्छा कर रहा है किसी डोमेन में, हम लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. बिहार किसी स्टेट में किसी डोमेन में अच्छा कर सकता है, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. उसको ऐसा इनोवेटिवली बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं कुछ. यस यस. और फिर हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडिशन की. वैल्यू एडिशन के 6-7 सोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं. AI बेस्ड टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी हैं. न्यूज़पेपर्स, आई थिंक न्यूज़पेपर्स को लोग बर्डन के तौर पे देखने की बजाय अगर उसको हॉबी की तरह कल्टीवेट करेंगे, दैट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव हॉबी आई थिंक. तीसरा सोर्स है कि मार्केट में जो भी कोचिंग से मटेरियल हैं उसको आप यूज कर सकते हैं. चौथा कि भाई प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स के नोट्स हैं Best जो है वो. अपने चैनल पर डालते हैं या फिर ब्लॉग्स पर डालते हैं, उसको प्लीज यूज करिए. हम लोग अपने भी नोट्स ट्राई करेंगे अपने चैनल्स पे या फिर जिस भी मीडियम में पॉसिबल हो डालने की. वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल. पांचवा है PYQs का मॉडल आंसर आप पढ़िए एंड रिकमेंडेड है कि खुद से बना के अपने पास रखिए इन ए कंडेंस्ड फॉर्मेट. अगला सोर्स है टॉपर की कॉपीज. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री. और अगला चीज है यूट्यूब. So this is innovation of my own. I would not say an innovation. So for example, इस बार हमारा सोसाइटी में क्वेश्चन आया था कि चिल्ड्रन ओबेसिटी ग्लोबलाइजेशन, इसको लिंक करके एक सवाल आया था. So here I had mentioned one initiative called Sugar Board by CBSE. So this I found in the YouTube channel of Revant Hemant Singh का, फूड फार्मर करके एक उनका चैनल है. Okay. So वहां से मैंने उस चीजों को इंटरलिंक किया था. So this is how you have to create interlinkages. पेपर को डायनामिक बनाओ. Ultimately it is a competitive exam. बिल्कुल. You have to do what others are not doing. और इसको हॉबी की तरह लो. आप अपने आप में क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करो. बिल्कुल बिल्कुल. रादर देन की बर्डन है भाई इतना ज्यादा है, आप समाज को जानने की कोशिश करो. और यूपीएससी भी बहुत हेविली इवॉल्व कर रहा है. बिल्कुल. जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है सोसाइटी के, जैसे कम्युनिज्म है
या फिर Regionalism. रीजनलिज्म ऐसे पे आप है, direct इससे questions. ऊपर जा रहा है यूपीएससी, इसके बियॉन्ड जा रहा है. सो देयर इज नो फिक्स. पेपर का लिंकेजेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे इस बार GS1 गवर्नेंस में. बिल्कुल. GS2 यस, में आए थे, right? गवर्नेंस के क्वेश्चन जीएस 1 में डाल दिए. एंड आई थिंक वो जो बैरियर जो है ना कि ऑप्शनल का कंटेंट अब यूज नहीं करना है जीएस में, वो भी कहीं ना कहीं टूट गया वो है. Yes. blur हो तो गया है. कंपटीशन इतना अच्छा इवॉल्व नया कंटेंट ला रहा है, एंड आइडियली वो इसीलिए कि आपको 450 प्लस जाना है जीएस में. तो अगर आपको एवरेज नंबर छोड़ना है तो देखो आप वही नोट्स रेफर करके एक नॉर्मल एवरेज सा जेनरिक आंसर लिख सकते हो. Yes. बट जो बियॉन्ड जाना है, अब जैसे आपके जो मार्क्स है वो अगर अचीव करना है जीएस में 484 आई थिंक, राइट? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वैसे ही कुछ है. तो वो अचीव करना है तो फिर ये करना चाहिए आप लोगों को. Yes. So I think going beyond the traditional mindset and doing what others are not doing. I think we have touched roughly most of the pointers. एक चीज जो ध्वनिश की मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो ये आंसर राइटिंग की बात कर रहा है, he used to write many pointers. So I think जो अयान सर की जो स्ट्रेटेजी आई थी, I think that is working as of now. Okay. Writing more number of pointers and substantiating with them. राइट. Substantiating them with as many cases, as many examples, as many data points as you could. For example, last year जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था GS1 में, लैंड रेवेन्यू या फिर जो भी परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सो हैड माय इकोनॉमिक्स ऑप्शनल विथ माई सेल्फ. उसके मैंने एक्सटेंसिव डेटा फैक्ट्स उसमें डाले थे. एंड दिस ईयर ऑल्सो हैड सम एडवांटेज देयर बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इन दैट मैनर. सो आई थिंक मेरे मार्क्स वहाँ पे अच्छे हैं. आई थिंक धोनिश के भी वहाँ पे अच्छे हैं. So having discussed all this, I think GS1 को हम नोट. ये जो आपने जो बात बोली ना एन जैन सर की स्ट्रेटेजी, बट आई थिंक वर्क कर रही है प्रोवाइडेड सब्सटेंशिएशन इम्पोर्टेंट Yes. है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट. जैसे Yes. बहुत मैंने जो टॉपर्स मतलब जो एस्पिरेंट्स जो कॉपीज दिखाते हैं उसमें देखा कि वो करने तो जा रहे हैं वो अप्रोच, बट वो उसमें अगर वन लाइनर सिंपल पॉइंट सिर्फ अगर आपको एक सब हेडिंग में 10-10 पॉइंट भरना है वो वर्क नहीं करेगा. आपको वो 10 पॉइंट में आप 7 लिखिए, गो फॉर 1 एक्स्ट्रा, बट एग्जाम्पल और सब्सटेंशिएशन होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट. ब्लफिंग नहीं चलेगी. Without substantiation तो hypothesis है ना sir. हाँ. Like वो it is not really something which is appealing to any reader. Till the time you explain to me with an example or a data point, why should I believe you? Is the something that Until unless वो बहुत ज्यादा ही जेनरिक Exactly. स्टेटमेंट ना हो. हाँ, if it is something that sun rises in the east, okay, ठीक है, Yes. you cannot debate that. Yes. But if you're making a hypothesis or an analysis, you might as well like फॉर एग्जाम्पल आप substantiate जीएस में लिख रहे हो हेल्थ का इशू है, Exactly. डॉक्टर पॉपुलेशन इशू है या फिर हेल्थ इंफ्रा का इशू है, तो आप डेटा डालो. और इवन बेटर कि आप साइड में ब्रैकेट्स में उसका कोट लिख पाओ. नीति आयोग से ले रहे हो, लांसेट रिपोर्ट से ले रहे हो, Right. पीआईबी की उठाई है आपने कहीं से उठाई है, तो दैट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर्स. एंड आई थिंक एग्जामिनर्स जो कि बहुत हाईली रेड होते हैं वो अप्रिशिएट करेंगे इन चीजों को. और It एक is rewarded. GS1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद आप लोग बता पाओ. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? सोसाइटी पहले लिखते थे या लीनियरली जाते थे 1 to 10? मेरी लीनियर अप्रोच थी, पूरा ही फुल लीनियर था. 1 to 20. मैंने 1 घंटा 15 मिनट का टाइमर लगाया था 10 मार्कर के लिए. ओके. फिर बचे हुए 1 hour 45 मिनट्स मैंने अपने 15 मार्कर्स के लिए रखे हुए थे. सो मुझे यहाँ पे पता चल जाता था कि मैं डिले हो रहा हूँ या पास जा रहा हूँ. सो उस अकॉर्डिंगली आई यूज्ड टू एडजस्ट माय स्पीड. इफ यू गाइस डिड एनीथिंग डिफरेंट, आप लोग बताइए. I mean वो GS1 के लिए specific नहीं था, but it is something that is true for all papers. In my case, कि first 40 minutes में my goal was to write first 5 answers. Then I would switch to 11 to 20 because they carry more number of marks. And then last के 30-35 minutes में my goal was to come back to 6 to 10. So that when the examiner is opening my sheet, first to 5 questions जो हैं, impression ये जाए कि because I've taken time to like write it and I've written it very properly and with elaborate points. So the impression is that okay, this is something which is a well-read paper or a well-rounded paper. At least that's what the impression that I want to communicate to the examiner in the first go. वो but ये GS1 के लिए specific नहीं था. I followed this for all the papers. And I did it linearly for all my papers. ओके. मैंने ये करा था पहले 2 अटेम्प्ट में 1 to 5 एंड 11 to 20 था, बट इस बार मैंने ये करा था कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं सोसाइटी, मुझे एक ऐसा इंटरनल फीलिंग था कि कहीं उसमें ज्यादा मार्क्स मिल रहे हो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ आंसर्स दैट यू कैन राइट. और हर बार मेरा होता था कि 9th 10th या 8th 9th 10th ही छूटता था बिकॉज वो लास्ट में रख रहे थे. तो इस बार मैंने ये सोचा कि जो 1-2 सवाल जो मुझे नहीं आते हैं या जिस पे मैं बहुत ही घटिया कंटेंट लिखने वाला हूँ वो मैं लास्ट के लिए रखता था. और फिर जो है वही 1 to 5, 11 to 20 या कभी कभार अगर वैसा लगा तो मैं सोसाइटी पहले लिख दिया है ना, तो वैसे कर रहा था. बट वो 2 क्वेश्चंस लास्ट में क्योंकि पता है कॉम्प्रोमाइज होने वाले. जैसे इस बार मुझे थोड़ा सा वो गंगा वाला एक क्वेश्चन था, अगेन डुएबल था, बट मेरा वहां पे ब्रेनस्टॉर्म हो नहीं रहा था. 16th या 17th क्वेश्चन था. गंगा 15 basic मार्कर पे में था. था. हाँ हाँ हाँ.
तो उसको मैंने लास्ट में रख के फिर कोशिश की कि मैं बाकी सारे आंसर्स कवर कर Indo-Gangetic सकूं। plane वाला जो Indo-Gangetic planes वाला, यस। तो विल एंड इट है, जस्ट आई Yes. विल कीप इट अ क्रक्स कि भाई दोनों अप्रोच काम करते हैं, दोनों अप्रोच का एक लॉजिक है। डूइंग पेपर लीनियरली उसका क्या फायदा है कि आपका ब्रेन साइमल्टेनियसली तीनों सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, वहां पे इंटरलिंक के जाने का ज्यादा चांस है। राइट। अगर आप हिस्ट्री के बाद इमीडिएटली बात ज्योग्राफी का सवाल उठा रहे हो तो ब्रेन आपका ज्योग्राफी पे शिफ्ट तो कर रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिक फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो रिंग ऑफ फायर की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, जो प्लेट टेक्टोनिक है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे अगर आप कोई हवाईयन जो अर्थक्वेक हुआ था, या फिर इंडोनेशिया में कोई माउंटेन सबगुंग करके कोई माउंटेन बालकनो जो है वो इरप्ट हुआ था, सो वहाँ पे आपका एक इंटरलिंकेज जो है वो सबकॉन्शियसली आ जाएगा। बट अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन को डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट उस में एक्सपर्टीज लेने लग जाएगा। अगर आप हिस्ट्री जा रहे हो तो आपका ब्रेन हिस्ट्री में एकदम एक्टिवली कॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट की महारत वाला माइंडसेट आ जाएगा। सो आई जस्ट इसको ये बोलना चाह रहा था कि बोथ द स्ट्रैटेजीज वर्क, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एंड हम तीनों लोग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी, हम तीनों को 100+ मार्क्स आए हैं, 110+ फॉर द मैटर। सो जस्ट हम फोमो हटाना चाह रहे थे। मेरे थोड़े कम थे इसमें, नियरली, आई but ठीक थिंक नियरली। सो जस्ट एक फोमो हटाने की बात है कि तीनों लोग के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तीनों अप्रोचेस काम करते हैं, किसी का फोमो लेने की जरूरत नहीं है। डू वॉट एवर सूट्स यू। आंसर राइटिंग कम करना है कम करो, ज्यादा की जरूरत है वो ज्यादा करो, वैल्यू एडिशन करना है जो करना है, डू वॉट एवर यू वांट, बस स्टिक टू द बेसिक्स। देयर इज नो स्कोप फॉर शॉर्टकट्स, देयर इज नो स्कोप फॉर स्पून फीडिंग। हमने डिस्कस किया था ना, 958 सिलेक्शंस, 958 स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। So strategies like you have to lock in. आपको Yes. क्या what relates best with you. उसके बाद then you take a call and then you do your permutation combinations और थोड़ा बहुत amendments करो. That is what we also did. So I think GS1 के ऊपर we had a good discussion. Right. We'll take a break and we'll shift to GS2. Okay, so guys, we'll now move on to GS2, and GS2 is one such subject which has a potential of getting very high scores. Toppers get around 130, 135 very easily there. And GS2 polity, governance, social justice and IR. So again, same वो रखेंगे, sources, strategy and answer writing. What makes the paper unique? How can you maximize your marks? तो राघव, sources में आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? या सो पॉलिटी में जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, उससे देयर इज अ नीड टू गो बियॉन्ड दिस, राइट? सो हियर आई यूज सम कोचिंग का मटेरियल फॉर मेंस कंटेंट। फॉर एग्जांपल अतीश माथुर सर का जो उनके चैनल पे फ्रीली अवेलेबल कंटेंट था, मैग्ना कार्टा करके, वो आई यूज्ड। कुछ बाकी कोचिंग्स का भी मेन स्पेसिफिक मटेरियल आई यूज्ड। चैट जीपीटी यूज़ किया, टॉपर कॉपी, टॉपर नोट्स, जो भी कंपेंडियम अवेलेबल थे वो सब रिसोर्सेज यूज़ किए थे। गवर्नेंस में आई हैड अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ सोर्सेज विच आई कवर्ड। गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस यूज़ करता था, फॉर एग्जांपल नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स थे उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैं वो यूज़ करता था। ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल्स यूज़ करता था, मोर ऑन द स्ट्रैटेजी पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ब्रॉडली देयर इज नो गुड सोर्स टू कवर इन द गवर्नेंस सेक्शन, एंड सेम गोज फॉर द IR. Right. गवर्नेंस में आई एम इंक्लूडिंग द सोशल जस्टिस बिट। सो बेसिकली सोर्सेज बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जस्ट आप वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं GS2 में, आई थिंक दैट उसका गेम है। Right. कोई IR के लिए आपको इतनी मोटी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इट इज करंट अफेयर्स एंड उसमें वैल्यू एडिशन का गेम है। सेम गोज फॉर गवर्नेंस, सेम गोज फॉर वैल्यू एडिशन इन द सोसाइटल जस्टिस एस्पेक्ट। थोड़ा सा जो पॉलिटी का आपको मेन स्पेसिफिक पढ़ना होता है, स्टैटिक एस्पेक्ट्स थोड़े Yes. से पूछ रहे हैं क्योंकि वो Yes. एडवोकेट जनरल पूछ लिया था Yes. और वैसे सवाल आ रहे हैं। यस यस। सो आई IR थिंक के लिए लेकिन क्या सोर्स था? IR के लिए मोर देन द सोर्स आई वुड फोकस कि भाई वैल्यू एडिशन कहाँ से लाया था मैं, क्योंकि आई डू नॉट रिकमेंड गोइंग आफ्टर दीज बल्की नोट्स फॉर IR, बिकॉज एक तो बहुत करंट का पोर्शन है, तो उसमें बहुत हेविली 1950 में इंडिया और अफ्रीका के क्या संबंध थे उसको फोकस करने की जरूरत नहीं। सो माई कोर मटेरियल फॉर IR वॉज वन ऑफ द कोचिंग मटेरियल जो मुझे याद नहीं आ रहा है। यू कैन टेक आइदर PW का ले सकते हो, विजन का ले सकते हो, जिस भी कोचिंग का आपको उठाना उठा सकते हो। बट मैंने इसमें मुदिता बंसल मैम जो लास्ट ईयर की रैंक 44 थी, उनके चैनल पे जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स डाले थे IR के, दैट वर वेरी फैंटास्टिक। तो मैंने उसको अपना बेस मटेरियल माना था एंड अपार्ट टू द कोचिंग मटेरियल विच आई यूज्ड, और उसमें फिर मैंने वैल्यू एडिशन किया था। ओके, दोनेश आप कुछ बताओ। So GS2 के लिए to be honest like मेरे notes काफी limited रहे. So
I made very brief notes. बट उसमें मैंने गवर्नेंस एंड पॉलिटी के लिए नोट्स बनाए थे. IR के लिए आई हैड अ सेपरेट सेक्शन. उसमें मेरे कंसाइज नोट्स 50 पेजर ऑलरेडी बने हुए थे, सो आई डिड नॉट रियली वर्क ऑन दैट अ लॉट. बट पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए PWOLIS का जो मटेरियल आता है दैट आई फॉलोड. एंड बियॉन्ड दैट over the last 1.5 year I was compiling my current affairs के notes from from compilations, from newspapers, from podcasts that I used to listen to, etc. तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं IR से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड, वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था. सो ब्रॉडली दैट वाज द रिसोर्स दैट आई फॉलो. ओके. इफ आई वुड लाइक टू ऐड, तो मेरा जैसे PSIR ऑप्शनल था, तो मेरा ये हो गया था फायदा कि बिकॉज देर इज अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन ऑल ऑफ दोस. पॉलिटी का एस्पेक्ट भी जो हम 1B में पढ़ते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और IR तो पूरा पेपर 2 होता है. तो IR तो आई डिड नॉट डू एनीथिंग स्पेसिफिक. मेरे इनफैक्ट कॉमन नोट्स थे, एंड आई थिंक फॉर दोज विद PSIR ऑप्शनल आई वुड रिकमेंड कॉमन नोट्स रखो, आपका काम हो जाएगा उसमें. गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए आप अलग से बना सकते हो. सोशल जस्टिस अगेन सोसाइटी के साथ लिंक करके बना लो, तो वो एक उसका एक्सटेंशन ही रह जाएगा आपका, तो वही सोर्स रख सकते हो. एंड फॉर IR इनफैक्ट आई फाउंड मेंस 365 टू बी अ गुड एडिशन, बिकॉज वो करंट का कॉन्टेक्स्ट प्लस थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आपको मिल जाएगा. और गवर्नेंस के लिए भी अगेन कोई भी कोचिंग का एक छोटा सा कंपाइलेशन, बट अगेन जैसे इन्होंने बताया वैल्यू एडिशन ही इंपॉर्टेंट है. तो मेरा भी ब्रॉडली सोर्सेज में यही था, लिमिटेड प्लस जो ऑप्शनल का बेनिफिट मैं जितना ज्यादा उठा सकूं वो. इसमें मेरे को आपसे एक थोड़ा क्वेश्चन था स्पेसिफिकली फॉर GS2 बिकॉज यू हैड PSIR एंड यू स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल इन PSIR. तो द थिंग दैट आई वांटेड यू टू थ्रो ऑन लाइट ऑन कि किस हद तक हमें ऑप्शनल के नोट्स या ऑप्शनल का जो हमारे नोट्स बनते हैं वो काफी टेक्निकल बनते हैं. जैसे हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो काफी टेक्निकल नोट्स. आई एम श्योर PSIR में भी काफी थ्योरीज होंगी जो काफी टेक्निकल होंगी, विच इज वेरी मच रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट. उसको किस हद तक हमें इंटीग्रेट करना चाहिए GS2 जैसे पेपर के लिए, सो दैट इट डज नॉट get overboard also and also is appealing to the examiner. तो वो बाउंड्रीज आपने कैसे सेट करी अपने? राइट. तो पहला तो मेरा भी बहुत इनिशियल इनर्शिया एक था कि मैं कैसे यूज कर सकूं, बट आई थिंक जैसे जैसे टॉपर कॉपीज देखते गए ना, इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा हुआ है कि वो लाइन ब्लर हो चुकी है. तो अब IR में फॉर एग्जांपल इफ किसी स्कॉलर का कोट है, अब सी राजा मोहन, सुहासिनी हैदर, ये तो हम सब पढ़ रहे हैं. तो अगर मैं उनके कोट से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, है वो मेरा ऑप्शनल का कंटेंट, मेरे को उसके न्यूआंसेस पता है, बट अगेन अगर मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई थिंक देयर इज नो हार्म. समबडी हु इज चेकिंग माय GS पेपर विल आल्सो अप्रिशिएट दैट. अगर मैं कोई कौटिलियन थियरी या कोई रियलिज्म की थियरी IR के पेपर्स में ऐड कर रहा हूँ, तो आई थिंक दे हैव बिकम कॉमन टर्म्स. मार्क्सिज्म अगर मैं कहीं ऐड करने की मेरे पास स्कोप है पॉलिटी में, तो आई थिंक दीज आर मोर और लेस एक्सेप्टेबल टर्म्स, तो वो मैं ऐड कर पा रहा हूँ. अब एथिक्स में भी जैसे हम रॉल्स थियरी और डवॉर्किंस थियरी और ये सब कोट करना शुरू कर दिया है, तो अगर हमारे पास कहीं सोशल जस्टिस में उसका स्कोप आ रहा है, तो आई थिंक वी कैन यूज दैट, प्रोवाइडेड हम एक बेसिक एक्सप्लेनेशन उस चीज का एक लाइन में कंसाइज करके दे सके. ये नहीं कि हम उसको बस लिख दिया हमने, वो कोई इंटरप्रेट कर लेगा. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले कि क्यों उससे रिलेवेंट है. एंड IR में आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप. आई थिंक जो दीपेन सर के जो क्लासेस भी होते हैं, बहुत लोग करते हैं उसको, उसका कंटेंट भी अब वो लेवल का जो है कंटेंट दे रहा है, जिसमें कोट्स होते हैं और ये ऐसे टाइप के कीवर्ड्स होते हैं. तो आई थिंक वो लाइन थोड़ा सा ब्लर हो चुका है. आप अगर उसको सही से यूज कर सकते हो और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आई थिंक इट इज जस्टिफाइड. बेसिकली कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, यू हैव नथिंग बट यू हैव टू डू इट. यू हैव टू डू इट, राइट. अगर आप नहीं कर रहे हो कोई और करेगा और वो मार्क्स ले आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो पॉलिटी पे आते हैं. यस स्ट्रैटेजी पे मूव करते हैं. तो स्ट्रैटेजी, वैल्यू एडिशन और आंसर कैसे लिखना है, तो आप ही प्लीज इस पे लाइट डालिए थोड़ा. ठीक है. सो पॉलिटी में 3-4 जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं उस पे आपको कमांड बनाने की जरूरत है. एक वन तो गोज विदाउट सेइंग कि भाई आर्टिकल नंबर जरूर से मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल इस बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर सवाल आया था इस साल, आई थिंक लास्ट ईयर आया था, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उस पे आर्टिकल आपके पास होना जरूरी है. इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक अमेंडमेंट टू इट, उसका भी रेफरेंस इज वेरी क्रिटिकल देयर. नेक्स्ट इज द जजमेंट्स. आई थिंक दिस इज नॉट द आइसिंग ऑन द केक, दिस इज द केक इटसेल्फ. आई थिंक जो ट्रिब्यूनल्स वाला सवाल जो इस बार आया था, मेरे पास इस बार 4 जजमेंट्स रेडी थे. आई यूज टू मेक श्योर कि भाई हर एक पॉलिटी के टॉपिक पे, जो भी मेंस का टॉपिक है, 4 से 5 जजमेंट्स रेडी होंगे. फॉर एग्जांपल मद्रास हाई कोर्ट वाला जो जजमेंट था वो मैंने पुट किया था, आर गांधी वाला जजमेंट मैंने पुट किया था, एंड सो मेनी 2-3 जजमेंट्स ऑल्सो आई पुट इन माई आंसर फॉर द ट्राइब्यूनल्स क्वेश्चन.
तीसरा एस्पेक्ट होता है इसमें कमिटीज का यूज बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज यू आर शोइंग टू द एग्जामिनर कि भाई वी आर नॉट सेइंग कि भाई कुछ वर्बोज लिख दिया हमने, वी आर सेइंग जो एक्सपर्ट ने बोला है, इसकी पूरी लाइफ एक एक्सपर्टीज बनाने में निकल गई है। फॉर एग्जांपल कमिटीज में अगर इलेक्टोरल इश्यूज की बात करें, वी हैव दिनेश गोस्वामी कमेटी है, हमारे पास हालिम कमेटी है, वोरा कमेटी है एंड सो ऑन। ये 3 चीजों लिखने के बाद बेस्ट प्रैक्टिस लिखने की बड़ी जरूरत है पॉलिटी के केस में, इफ यू वांट टू मेक योर आंसर स्टैंड गवर्नेंस स्पेशली। यस यस। सो पॉलिटी में कई लोग बोलते हैं कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पे सवाल आ जाए, वी हैव सो मेनी गुड केस स्टडीज। फॉर एग्जांपल अमेरिका के जो पार्लियामेंट में होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ बड़े कॉशियसली यूज किया जाता है। अनटिल अनलेस वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का इशू ना हो, वहाँ पे मेंबर्स को मेंबरशिप से डिबार नहीं किया जाता है। सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, इट शोज द एग्जामिनर दैट यू हैव सच एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ नॉलेज दैट यू आर नॉट ओनली केयरिंग अबाउट योर ओन कंट्री, बट यू आर केयरिंग अबाउट की जो पॉलिटिकल डायमेंशन जो ग्लोबली हो रहा है, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट। So Politica had to speak on this. If you want to add here, otherwise we'll move on to governance and societal justice aspect. Maybe you add. ठीक है। So governance and societal justice की अगर बात करें तो societal justice मैं shortly कवर कर देता हूँ। 5-6 vulnerable sections हैं, इनको must cover है। PWD हैं, people with disability, women, children, old age people, transgender people, and I think ये मोटा मोटी 5-6 लोग होते हैं। Pardon me if I am forgetting or missing any vulnerable section। तो इस पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो स्कीम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वे फॉरवर्ड है, इन 6 पिलर्स के अराउंड अगर आपने ये 5 वल्नरेबल सेक्शंस कवर कर लिए, बिल्कुल, आई थिंक मोटा मोटी सोसाइटल जस्टिस वहाँ कवर हो जाता है। कमिंग टू द गवर्नेंस बिट, यहाँ पे नीति आयोग कुछ पब्लिकेशंस के साथ आता रहता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स का आता रहता है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस करके उनकी एक रिपोर्ट आई थी। स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आते रहती है वाटर मैनेजमेंट पे, ग्राउंड लेवल सॉइल मैनेजमेंट पे, या फिर एजुकेशन पे, या फिर जो भी है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम्पल डालना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने GS4 से इंटरलिंकेज किया था। फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस का अगर कोई सवाल आता है, तो देर इज अ फैबुलस IAS ऑफिसर वर्किंग इन बनारस कॉल्ड हिमांशु नागपाल सर। सो उन्होंने वाटर लेवल के क्राइसिस पे काफ़ी काम किया था। नेक्स्ट कि आप चार्ट्स एंड डायग्राम्स का यूज़ करो GS2 में। सो फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन सेक्टर की बात है, सो आप एक सिंपल सा ग्राफ बना दो, उसमें एनरोलमेंट लेवल ऐसे करते हुए इंक्रीजिंग स्लोप में दिखा दो। अगर कोई स्कूल के ड्रॉप आउट्स की इशू है, तो आप बता दो कि भाई प्राइमरी लेवल में कम है, सेकेंडरी में बढ़ जाता है, टर्शियरी में वॉट एवर इट इज़। या फिर आप जो एनरोलमेंट रेशियो है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में उससे कम है, टर्शियरी में और भी कम है। या फिर वॉट एवर आपको हेल्थ में यूज़ करना है कि जो भी क्या वैकेंसी है, डेटा के थ्रू आप लिख दो, या फिर उसको एक डायग्राम के थ्रू लिख दो। सो आई थिंक जो पब्लिकेशंस, और फॉर एग्जांपल नॉट ओनली डेटा, आप अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप सिंपल ग्राफ्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वाज रेफरिंग टू वन लांसेट रिपोर्ट, वहाँ पे हेल्थ का एक जर्नल होता है। सो देयर आई केम अक्रॉस अ कर्व कॉल्ड द प्रेस्टॉन कर्व। वो पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिंक करता था। सो इवन दैट आई पुट इन माई गवर्नेंस का आंसर। उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस है, पिक्ड अप सर्टेन कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस का अगर क्वेश्चन है, तो आई विल पुट इन माई कंक्लूजन एक की टर्म उठाया मैंने सर्वे से, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। So that is something which my competition is not doing, and if I am doing that, I think examiner will be appreciating that. So इसके अलावा way forward और best practices लिखना governance में is a sine qua non given the level of today's competition. Okay. So should I move on to IR का bit? कुछ ऐड करना है ध्वनिश आपको? I think he's covered it very comprehensive. So IR में जो मैंने बताया कि कोई भी कोचिंग का नोट्स आप पढ़ लो, उसका मेन स्पेसिफिक मटेरियल, तो आपका एक बेस कवर हो जाएगा। फिर मैंने मुदिता बंसल मैम के नोट्स को हेविली यूज़ किया था, रैंक 44 थी वो लास्ट ईयर की। उसके बाद मैप्स, आई थिंक बहुत टॉपर्स ने रिकमेंड किया मैप्स बनाइए। उसमें सिर्फ मैप बना के छोड़ मत दीजिए, अगर 2 देश की बात हो रही है तो दोनों को पिन पॉइंट करिए लोकेशन से, एक ब्रिज बना के उस पर हाईलाइट कर दीजिए कि वॉट एवर इशू आर ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अफ्रीका का कोई सवाल आ गया है, तो एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक टाइप का एक बना के आप लिख दीजिए वहाँ पे। तो आई थिंक एग्जामिनर को एक जो पिक्टोरियल वहाँ पे इंगेजमेंट हो रहा है, दैट ही विल और शी विल अप्रिशिएट। उसके बाद कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है आज के दिन में IR के पेपर में। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना का कोई भी क्वेश्चन आने वाला था, आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आई विल पुट द 3C कीवर्ड बाय निरुपमा राव मेमन मैम। सो उसमें है कम्पीट, कोऑपरेट, कन्फ्रंट।
अगर कंक्लूजन में लिखना था तो कोई देश के बीच अच्छा संबंध बन रहा है, सो आई विल बी राइटिंग देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस, देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन. सो इस टाइप के प्री फॉर्म्ड कंक्लूजन्स मैंने प्रिपेयर कर रखे थे. बहुत अच्छा. अफ्रीका का सवाल आने वाला तो आई विल राइट AI, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था. एशिया सॉरी अफ्रीका इंडिया रिलेशंस AI वाला, आई वाला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. सो दीज वेर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आई फोकस्ड अपॉन. पॉलिटी में एक चीज मैं बोलना भूल गया कि मैंने न्यूज़पेपर से काफी हैवी, इनफैक्ट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट न्यूज़पेपर से काफी हैवी मैंने वैल्यू एडिशन करा था. फॉर एग्जांपल अभी का मेंस अगर मुझे देना होता, सो आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर कुछ दिनों पहले का. सो देयर वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनरेबल MP शशि थरूर सर. उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में. सो अगर वो टॉपिक से सवाल आता, I would have definitely added on to that in the examination just to give an examiner an holistic purpose, holistic sense of sight कि भाई देखो एग्जामिनर के सामने ये बंदे की कॉपी आई है, इसने काफी अच्छे से चीजों को कवर किया हुआ है. So this was my 2 cents on how I did prepare for GS2 subject. Okay. Dwanish, do you want to add anything? I think fundamentally he's covered everything. And GS2 में specifically what I like beautifully in terms of his preparation also was that how he was able to link things which are not typically envisioned in GS2, like for example graph making or map making beyond a certain point, and adding things that are not necessarily the competition is doing. So the broadly I believe GS2 में the scope for marks addition is because you kind of have lot of scope for novelty there. पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, काफी डायनामिक चीजें आप ऐड कर सकते हो. नेसेसरली यू शुड फॉलो सम लीडर्स. फॉर एग्जांपल डॉक्टर S जयशंकर की कोई कोट्स हैं लाइक पर्टिकुलर रिलेशंस पे यूरोपियन यूनियन के साथ या अफ्रीका के साथ. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ऐड. एंड अगर कोई रिसेंट में इवेंट हुआ है तो वो एसेंशियल हो जाता है कि वो अगर उस पर टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू read something on it, so that वो आप एग्जामिनर को कम्युनिकेट करो that you are up to date with the international developments as well. फॉर एग्जाम्पल जब हमारा बांग्लादेश से Right. रिलेशंस अच्छे थे, सो ऑनरेबल MEA ने बोला था इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को एक की टर्म से कि सोनाली अध्याय, गोल्डन फेज में हमारा रिलेशनशिप. I hope the situation recovers quite fundamentally. So this was something which I wanted to give an example for that case. जैसे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड करनी थी GS2 में. जैसे राघव ने बताया कि उन्होंने नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली और डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर्स ये वो, तो अगर जैसे उन्होंने वो चीज़ किया है तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि वो मेंस के 2 महीने के बीच में ही किया है. Yes. थ्रू आउट वो Yes. चल रहा है. तो अगर मैं हूँ जिसको जो थोड़ा आलसी भी है और जिसको 2 महीने के अंदर करना है, तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये वर्क किया है कि मैं टॉपर कॉपी खोल दूं. Yes. जैसे इस साल मैं मेंस दे रहा होता तो मैं राघव सर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके फिर उन्हीं के कॉपी में मैं मांग के उसी में से देख लेता. तो इसमें मुझे बहुत सारे, जैसे कुणाल रस्तोगी सर थे आई थिंक लास्ट ईयर रैंकर, उनके पॉलिटी के आंसर्स वेर एक्सेप्शनल, ब्यूटीफुल आंसर्स इन GS2. एंड आई थिंक वो जो मैंने लाइन ब्लर करने की बात की ना, ही वाज वेरी मच एबल टू यूज हिज PSIR नॉलेज इनटू GS2. तो आई थिंक इफ यू वांट टू सेव टाइम, इफ यू हैव जस्ट दीस 60 days, देन मे बी रिलाई मोर ऑन गेटिंग टॉपर कॉपीज से कंटेंट, टॉपर नोट से कंटेंट. अनिमेश प्रधान सर हैज अपलोडेड हिज नोट्स ऑन हिज टेलीग्राम चैनल ऑफ GS2. तो उसमें आपको जो फैक्ट शीट्स वगैरह मिल जाएगी, है ना, सारे आर्टिकल्स एक जगह कोलेटेड. तो आप वही नहीं, आप भी खुद से बनाओ ताकि आपका एक लिख के भी वो बढ़ जाए. सारे केस लॉज एक जगह कंपाइल करके रखो, है ना. आई थिंक 100 केस लॉज इज नो बिग थिंग. इट सीम्स लाइक अ ह्यूज टास्क, बट आप जैसे ही उसको एसोसिएट करना आई स्टार्ट थिंक कर वो दोगे, मिनिमम लेवल हो गया है. मिनिमम हो गया है. वो डेटा एक जगह पे कंपाइल करके रखो, है ना. तो आई थिंक वो जरूरी है. एंड जैसे पहले भी GS1 में डिस्कस किया था, टॉपर कॉपीज एंड टॉपर नोट्स का वो जो एक्सरसाइज है कि आप कंपेयर करते करते सीखो कि उसका ये पॉइंट आया, मेरा क्यों ये पॉइंट नहीं आया, उन्होंने ये वैल्यू एड किया, मैं क्यों नहीं कर पाया. तो उससे वैल्यू एडिशन भी सीखो और आंसर राइटिंग भी सीखो. टॉपर कॉपी और टॉपर नोट्स देखने का एक फायदा ये ना कि उन्होंने ऑलरेडी वो मेहनत कर चुके हैं वो लोग. यस यस यस. So why to replicate if you have not done it already? बिल्कुल. If you have done it already, then it is a better case. But you have not done it already, then why not use the already did मेहनत? वो वाली ये भी बात. पता चल जाता है ना वो वैल्यू एडिशन को यूज कैसे करना है एक्चुअली पे. Yes. हाँ यस. वो भी एक स्किल है कि आपने नोट्स तो कंपाइल कर लिया वैल्यू एडिशन के, बट उसको अप्रोप्रिएटली हिट करना है उस क्वेश्चन में मार्क्स के लिए. तो टॉपर कॉपीज के थ्रू इजीली आता है. तो जो इन्होंने किया है कि उन्होंने खुद से मेहनत करके कंपाइल किया है, आई एम श्योर हर एक एस्पिरेंट का एक पर्टिकुलर नीश होता है.
हम कुछ ऐसी हॉबी या कुछ फॉलो करते हैं जहाँ से हमें नया कंटेंट मिलता है, तो वो तो बेशक करना ही है, बट जितना आप दूसरों में से सीख सको इस तरह से, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। एंड अब हम आंसर राइटिंग की तरफ मूव करते हैं, तो राघव आप आंसर राइटिंग में कैसे मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपने क्या अप्रोच फॉलो की उसके बारे में बताइए। I think maximum things I've talked about early. So make short notes, revise it as many times as you can. Answer writing अगर नहीं हुई है तो कर लो, बट अगर एक substantial answer writing हो गई है, time management if not an issue, तो I think short notes बनाओ, उसका 1/3 पेज का जो राइट हैंड कॉर्नर है उसको empty छोड़ो, keep value addition, keep doing value addition there. एंड आई थिंक आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, rather than writing more number of answers without any purpose. Right. So this was something which I did. With Dhonish is somebody who wrote more number of answers. He was more comfortable कि भाई अगर वो multiple questions को attempt करके देख दे तो उसका जो fear है वो हट जाए, and he would be mentally prepared कि भाई come what may, he is prepared to do that. I think Dhonish will say the same thing. Right. I agree on that front. Ki, like my approach fundamentally for answer writing has been same for all the papers. Ki, try to cover as many questions as possible so that you are better, so that I am better prepared for war. That is how my mind functioned. But GS2 में specifically मुझे लगता है कि एटलीस्ट ओवर द लास्ट 2 years ये मेरी फाइंडिंग रही है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है एक्चुअल एग्जामिनेशन में उसका लेवल काफी बढ़ गया। Yes. वो Last year was a very exactly dangerous GS2 paper. अरे why are we forgetting 24 even? 24 भी easy नहीं था, 25 तो था ही. डायरेक्ट क्वेश्चंस का स्कोप तो है ही नहीं, लाइक वो क्वेश्चन ही कॉन्वल्यूटेड आता है, and in 7 minutes you basically have to analyze, synthesize and come to a conclusion with and write an answer which is probably better than your competitor, right? It has to be better than your competitor. और मुझे ये लगता है कि जो इकोसिस्टम है at large, जो टेस्ट सीरीज का इकोसिस्टम है at large, it is still playing catch up with UPA with the It will always play catch up. exactly especially for GS2 क्योंकि हमें लगता है कि टेस्ट सीरीज करेंगे तो वी आर प्रिपेयर्ड, बट वो GS2 के लिए स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि वो कॉन्वल्यूटेड नेचर ऑफ क्वेश्चंस या उस लेवल की थिंकिंग फोर्स ही नहीं होती है टेस्ट सीरीज में, तो उसके लिए PYQs GS2 के लिए स्पेसिफिकली आई वाज वेरी एडमेंट कि आई वुड राइट PYQs ओनली एंड आई वुड राइट PYQs वेरी रिलीजियसली एंड आई विल मेक मॉडल आंसर्स आउट ऑफ इट। वो एक पर्टिकुलर चीज थी जो मैंने GS2 में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज की है कि PYQs. Right. PYQs काफी हद तक वर्बटम रिपीट ना हो लेकिन उसका एसेंस रिपीट हो जाता है. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है उससे रिलेटेड इलेक्टोरल लॉज भी हैं. फॉर एग्जांपल आरपीए का क्वेश्चन हर साल 1 साल बीच करके लगभग आ ही जाता है. सो भले वो टॉपिक रिपीट ना हो रहा है बट उसका एसेंस इन समवट फॉर्म रिपीट हो रहा है. जैसे गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको कई बार एग्जाम में आप उसका स्ट्रक्चरिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ब्रेक डाउन करना. तो आई थिंक इसलिए अगर PYQ उसकी प्रैक्टिस कर ली है उस पे तो हम हमारे कलेक्टिव नॉलेज से और हम उस वर्ड्स को समझ के भी एक आंसर लिख सकते हैं. एंड आई थिंक इसमें भी एक चीज ये करना कि अगर वो सवाल नहीं टूट रहा है तो इट इज ओके कि आप पैराग्राफ में लिख के उसको अप्रोच करने का वो करो रादर देन कि आप पॉइंट्स में जाओ. स्पेशली गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ. 20 में से 18 सवाल होंगे जो आपसे अच्छे से टूट जाएंगे और जिसके पॉइंट्स बनेंगे. अगर 1-2 ऐसे आ रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. कीप दैट फॉर द एंड. और उसमें बहुत एफर्ट और रिसोर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो डायनामिक अप्रोच होनी चाहिए GS2 के लिए तो खासकर बिकॉज़ वो कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं. बिल्कुल. सो डू नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन. बिल्कुल. एंड अगर प्रैक्टिस करना भी हो तो व्हाट आई वुड रिकमेंड की टेस्ट सीरीज देने से, मार्केट की जो टेस्ट सीरीज है जो हमारे जैसे बच्चे ही बनाते हैं. So there is no university professor making it जो actual exam में आता है. I think so. बिल्कुल. There is nothing confirmed news about it. So what I would recommend कि जो current year का PYQ है, for example 25 का जो last asked PYQ है, उसको आप AI में feed करो और AI को बोलो कि भाई इस level of preparation, even a level beyond this level of preparation, आप एक मेरे को question set बना के दो and you should attempt that. क्योंकि वो level of difficulty को एक बार habituate कर पाना is very needed in this period. 100%. So I think rather than, I think priority should be कि PYQs के मॉडल आंसर प्रिपेयर करो. दूसरा कि AI से फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाओ जो कि मार्केट में इजीली नहीं But I अवेलेबल. think limited to 1 or 2 rounds. Yes, as your time permits and given your level of preparation. So I think this should be it for our GS2 strategy. Right. So we've covered GS2. Basically, the points that were highlighted is that this is a very, very dynamic paper. So and this is a paper which, because it gives you the scope to maximize marks and because there is a lot of content available, so you need to go for as enriched value addition as possible. Yes. हर एक चीज Yes. में.
ठीक है, तो नाउ विल मूव ऑन टू GS3. आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर कि आप लोग इन 2-3 अप्रोचेस में से PSR ऑप्शनल वाले भी जो PSR का इंटीग्रेशन है उसमें से कुछ अगर देख पाए. And someone not from the PSI background scoring good enough marks Right, is right. also a doable approach. right? So let's move on to GS3 now. So hi. Now we've entered the third segment of our video where we'll discuss GS3 in detail. GS3 is something which I also like to call the Achilles heel, simply because of how difficult it is, and most aspirants do struggle in scoring well in GS3 and also covering the entire syllabus. So we'll keep the format same, which is probably go around and ask about the resources. Then we'll follow it with strategies that we followed and answer writing approach for GS3. So Dishant, I would very much like you to share your insights on the resources that you followed for GS3, particularly because of how lengthy GS3 syllabus can be, and why do you think that aspirants in general find it difficult to score well in GS3? And this, I think, extends to others as well, even you, Raghav. So the second part of your question, I think it is very important to address. You called it the Achilles heel, and it surely is the Achilles heel. Like even in this year's non-selected list, the most major complaint is GS3 ने लेके डुबा दिया. 80 से नीचे स्कोर्स है. इनफैक्ट कुछ रैंकर्स का भी 80 से नीचे स्कोर है. तो बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को एनालाइज करना कि क्यों ऐसा स्कोर आ रहा है. पेपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेपर तो उसी तरह के जिस तरह से हम हर GS को अप्रोच करते हैं उसी तरह से अप्रोच करना है. बट आई थिंक वो जो कुछ न्यूआंसेस है इस पेपर की, सो आई हैव स्कोर्ड बेटर देन मोस्ट इन ऑल 3 मेंस दैट आई हैव गिवन. सो व्हाट आई फाउंड कॉमन, एंड मैंने सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने और लोगों को भी भेजा कि यार तुम बताओ मेरे को क्या वर्क कर रहा है, कहीं मैं ये ना करूं कि मैं कोई और अप्रोच फॉलो करके और गड़बड़ कर दूं. तो आई थिंक 2-3 things that are most important, most essential in GS3 is that it is not a generic paper. It is a very, very specific paper which requires everything to be addressed with value addition and enrichment. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन है, तो एग्रीकल्चर के उस क्वेश्चन में अगर मैं समझो चैलेंजेस ऑफ Downstream, upstream and downstream वाला क्वेश्चन ले लो. चैलेंजेस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अब तो मेरा वैल्यू एडिशन है कि मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को एज अ फ्लो चार्ट या एज अ वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में सबसे पहले, क्योंकि वो एग्री मार्केटिंग का सवाल है, तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो एग्री मार्केटिंग की बात करेगा कि कितना परसेंटेज एग्री मार्केटिंग का स्कोप है, फिर उसमें से हॉर्टिकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनिमल हस्बेंड्री का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. अपस्ट्रीम चैलेंजेस में फॉर एग्जाम्पल द चैलेंजेस, तो उसमें हर एक पॉइंट में मेरा एक डेटा पॉइंट या तो एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल skewed है cold storages. Example, पंजाब एंड हरियाणा have the largest amount of cold storages. फिर उसके बाद जब मैं solutions की बात करूंगा तो शांता कुमार कमिटी has recommended this and this, और अशोक दलवाई कमिटी has recommended this and this. Third, best practices. For example, Millet Sisters Network have created a SHG type of a group where they have done this for marketing. So every point is very, very specific. Every point is very, very enriched and it adds value to the answer. तो I think because the major mistake people make कि वो general लिख देते हैं points, उससे एक तो नंबर कमाएंगे, दूसरा GS3 में कंटेंट बहुत है हमारे पास, तो हमारा आंसर डिफरेंशिएटेड होना चाहिए. हमारे हर एक आंसर में हमारे पास स्कोप है एक फ्लो चार्ट या डायग्राम ऐड करने की, एक प्रोसेस ऐड करने की, एक विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल ऐड करने की. साइंस एंड टेक में हमारे पास स्कोप है डायग्राम्स ऐड करने के. इंटरनल सिक्योरिटीज वन सच एरिया जहां बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है. तो आई थिंक ये पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन बेस्ड है, जिसका जितना ज्यादा, इनफैक्ट यही एक पेपर है जहाँ पे कंटेंट इज किंग वाला जो हमारा जो बात है वो सच में जायज है. 1 और 2 में तो आप कहीं ना कहीं कुछ स्कोप है आपके पास करने का, बट 3 में तो अगर आपका कंटेंट एक्सेप्शनल है तो ही वो मार्क्स देगा. दूसरी एक चीज मेरे को लगती है कि हम अननेसेसरी फोकस इकोनॉमी पे ज्यादा देते हैं. इकोनॉमी इतना वास्ट है, 3 या 4 सवाल मैक्सिमम, उसके लिए हम इतना फोकस दे रहे हैं कि हम पूरा कवर भी कर रहे हैं, हम उसके नोट्स भी बना रहे हैं, हम स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी का, हम जो करंट में चल रहा है इकोनॉमी का वो भी पढ़ रहे हैं. तो आई थिंक मोर देन इकोनॉमी. अब इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे थे. पहला ही एक वो इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI एंड स्टेट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. अब वो 2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड 11th दोनों हमने नहीं पढ़े. एंड यूपीएससी हर बार ऐसा 1-2 स्टैटिक मिक्स करंट मिक्स कोई क्वेश्चन दे रहा है जो हमने नहीं पढ़े.
एंड फिर भी अगर हमारा 60% ऑफ टाइम वेंट इन इकोनॉमी इन GS3, तो इट इज नॉट रिवॉर्डेड इन एग्जाम. तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, माय स्ट्रेटेजी हैज बीन कि एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी इन दैट प्रायोरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 टोटल मिला के मेरे 12 सवाल तो इसी में हो गए. 4 एग्रीकल्चर के, 4 इंटरनल सिक्योरिटी के और 2 समझो ये, तो मेरे कितने 10 हुए. और उसके बाद 2 इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म्स पे भी एक आध सवाल रिपीट हो जाता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं 12 सवाल कवर करूंगा. बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल कंटेंट उसमें होगा मेरा. उसके बाद इकोनॉमी आएगा मेरा, जिसमें मैं जो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक ये सोर्सेस को मैं ऐड करता हूँ, बट ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी, फिर आप उस पर ऐड करना. कि उसके बाद एनवायरमेंट एंड साइंस एंड इकोनॉमी है. तो इकोनॉमी में मैंने स्टैटिक उतना मैं नहीं पढ़ूंगा, स्टैटिक देखूंगा भी नहीं, अगर आ गया तो आ गया. बट मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पॉइंट्स पे मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स बने हुए होंगे. नोट्स अब इसमें कैसा होता है कि नोट्स में आपके कमिटी रिकमेंडेशंस, डेटा और जनरल पॉइंट्स तो इजी है ब्रेनस्टॉर्म करने, कोई भी 8-10 कर लेगा. बट जो मेरा वैल्यू एडिशन है वही मेरे बेसिक नोट्स है. तो इकोनॉमी एंड आफ्टर दैट एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, जिसमें से 2-2 सवाल आने वाले हैं. एंड वो कहीं से भी आउटराइटली या तो एकदम इजी होंगे या तो एकदम रैंडम होंगे, है ना. या तो आपको डायरेक्टली रामसर साइट्स पूछ लिए, या तो आपको डायरेक्टली कोई नोबेल प्राइज पूछ लिया, तो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजीज पूछ ली ऐसी, इस तरह से. ब्लू LED मेरे को याद आया, मेरा GS प्रीलिम्स के टाइम का पड़ा हुआ, तो ठीक है मैं कर लूंगा. मैं उसका डेटा याद कर लूंगा, सोलर का और ये सब चीज का, बट उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा उसमें. तो आई थिंक प्रायोरिटाइज करके जो 12 से 14 सवाल जो बेस्ट लिखने हैं, वो सच में मैं बेस्ट लिख के आऊंगा. और उसके बाद जिनको अप्रोच करके निकलना है, उसको बस अप्रोच करके निकल जाऊंगा. Got it. What's your take on it, Raghav? So for me, economics was my optional. So sources के terms में I don't think I am the right person to guide here, because मेरा वो optional ही था. So what I can focus in this segment कि भाई value addition कैसे करें, how to write better than your competition. So economics और agriculture की बात करें तो I think the best possible source which can arise वो है survey, economic survey. वहाँ पे इवन मनरेगा जो कि अब रीनेम्ड एज BBG रामजी, वहाँ पे उसके लिए भी डेटा पॉइंट है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ग्रोथ फोरकास्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उसका तो एक्सेप्शनल डेटा सेट है ही है. एंड इट इज द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स विच यू कैन कोट इन योर पेपर्स एज वेल. उसके बाद ये सर्वे आपको बता रहा है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड क्या क्या चैलेंजेस है. उसके बाद आता है बजट. बजट में गवर्नमेंट का क्या विजन है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है उस चैलेंज को केटर करने के लिए. आई थिंक दैट इज अगेन एन एक्सेप्शनल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट, उसको आप क्रिएट यूज कर सकते हो. और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अल्टीमेटली वी हैव नीति आयोग का जो कंपाइलेशंस होता है, वो आप प्लीज यूज करिए. आप जितना ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल रिसोर्स यूज करेंगे, आई थिंक एग्जामिनर उतना ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे. रैंडम XYZ फाउंडेशन की अगर आप रिपोर्ट इनइक्वालिटी पे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आप कोट करेंगे, और उसके बजाय आप नीति आयोग का या फिर किसी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कोट करेंगे, आई थिंक दैट इज मोर क्रेडिबल. क्रेडिबिलिटी की भी एक इशू आती है इकोनॉमिक्स में. आई हैव सीन पीपल राइटिंग outrightly gibberish data and they expect कि भाई मार्क्स क्यों नहीं आए, बिकॉज आप gibberish data क्रिएट कर रहे हो. आप बोल रहे हो 80% वेल्थ 10% लोगों के पास है, भाई इसका एक गुड इनफ होना चाहिए. दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आई थिंक. उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पे बी वेरी थरो विथ योर, जहाँ से भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, नॉट फॉर द रील्स पर्पस, जस्ट टू क्रिएट द बेस्ट आउट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फॉलोइंग ORF ऑन ट्विटर, आई वॉज फॉलोइंग सम मेजर जनरल्स ऑफ इंडियन मिलिट्री ऑन ट्विटर, आई वॉज फॉलोइंग रिसर्च थिंक टैंक्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल. फॉर एग्जाम्पल समाधान स्ट्रेटेजी हम लोग जो लिखते हैं वो मैंने ट्विटर से कहीं निकाला था. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो चर्चा चल रही है, वो आई was very actively finding about in the Twitter space. For example, जो source code integration है या फिर जो भी nuanced चीजें हैं, मिलिट्री में क्या न्यू एडिशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, अटैक एंड डिफेंस बोथ कंबाइंड, आई वाज वेरी एक्टिवली फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया कंबाइंड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स. गूगल न्यूज पे आई वाज अ वेरी रेगुलर रीडर. सो इसको हॉबी की तरह क्रिएट करने की जरूरत है, रादर देन उसको एक टेंशन की तरह क्रिएट करने के, बर्डन लेने का, यार इतना रिसोर्स है कैसे होगा, क्यों नहीं होगा. आई थिंक अपने फ्री टाइम को भी इस तरह से एग्जैक्टली
फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक का क्वेश्चन आएगा, सो आई विल बी डेफिनेटली राइटिंग अबाउट द धज्जी दीवार केस स्टडी फ्रॉम गुजरात, या फिर साइक्लोन का कोई केस स्टडी आएगा, साइक्लोन का कोई क्वेश्चन आएगा, आई विल डेफिनेटली पुट ओडिशा मॉडल. वहाँ पे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कैजुअलिटी मॉडल है, जो उनका जो पहले 90s के तुलना में अभी जो बहुत इंप्रूव हो गया. आइडियल है वो तो एक्चुअली सबके लिए. सुनामी का क्वेश्चन आएगा तो आई विल राइट चेन्नई मॉडल, राइट, या फिर वट एवर द केस में भी. साइंस एंड टेक को आई थिंक करंट बेस्ड रखने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके कंपाइलेशन PT में से 65 या फिर बाकी जो भी कोचिंग के आ जाएंगे, आई थिंक उसको आप यूज करें. और प्लस एक आपके पास ब्रॉड पॉइंटर्स हैं सिलेबस में, उसको आपको कवर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नैनोटेक है, नैनोटेक को आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे? हेल्थ में यूज करेंगे, इंडस्ट्री में यूज करेंगे, एनवायरनमेंट में एट बेस्ट यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं. सो ये जो 5-6 डायमेंशंस बन सकते हैं, इसको आप यूज करिए एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में अगर मुझे इस साल क्वेश्चन पेपर लिखना होता है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर पूछा जा सके. तो गवर्नमेंट इज वेरी वोकल अबाउट इट. काफी सारे स्टार्टअप्स आ गए, फॉर एग्जांपल अग्निकूल, स्काईरूट वगैरह, ये सब स्टार्टअप्स आ रहे हैं. सो ट्राई टू प्रीएम्प्ट द क्वेश्चंस एज वेल. और एनवायरनमेंट में जो भी गवर्नमेंट के एल्टीलेट्स वाले पब्लिकेशन है, पंचामृत टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं, नेट जीरो बाई 2070 है, आई थिंक इन सारी चीजों के अराउंड आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट माय ब्रॉडली इवैल्यूएटेड स्ट्रेटजी इज फॉर GS3. got it. I think so. Like coming to the question of difficulty, मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल GS पेपर में अक्रॉस हम देखते हैं तो 3 बेसिक टेनेट्स आंसर राइटिंग के. देयर इज वैल्यू एडिशन, देयर इज एनालिसिस एंड देन देयर इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ इट. मुझे लगता है GS3 में तीनों का ही स्क्रूटिनी लेवल इज अ टैड बिट हायर देन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, सिंपली बिकॉज उस टाइम उधर ब्रेथ भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर. द सिलेबस इज ऑल्सो लार्ज, प्लस द टेक्निकलिटी इज ऑल्सो देयर. यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, यू ऑल्सो हैव एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देयर. तो बिकॉज वहाँ पे स्पेसिफिसिटी डिमांड करता है पेपर और डायनामिक भी है पेपर, तो वो तीनों का इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव मुझे लगता है बढ़ जाता है. इस वजह से scoring becomes a tad bit difficult for GS3. At least that's what's been my hypothesis. बाकी when it comes to resources, I would say कि so GS3 का syllabus is defined मेंस के उसमें. तो what I did for myself was कि for each of the keywords that are mentioned, like for example science and technology में there is nanotechnology, biotechnology, ये सारी चीजें is mentioned in the syllabus. तो उस पे I would prepare probably a couple of page notes for each of the topics, and beyond that there are some themes. जैसे agriculture है तो उसमें storage is a theme, there is food processing is a theme, land management is a theme, और crop diversification is a water scarcity is a theme. तो ये कुछ themes हैं जो कि last 5-7 years के पेपर अगर आप देखोगे तो एनालाइज करके पता चल जाता है कि इस themes पे आते हैं. इनफैक्ट काफी रिपीटेशन है. Exactly. सिक्योरिटी में रिपीटेशन है, एग्री में रिपीटेशन. नक्सलिज्म तो हाईली रिपीटेड टॉपिक. नेवल सिक्योरिटी, then yes, exactly. Then you also have indigenization of technology. आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही होती है. तो ये सारे थीम्स प्रेडिक्टेबल हैं, ये सारे थीम्स रिपीट हो रहे हैं GS3 में स्पेसिफिकली. तो उन पे काम करके एनालाइज करके वो थीम्स आइडेंटिफाई करके उस पे मैंने माइक्रो नोट्स बनाए थे दैट आई कैन जस्ट रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनर्स बेनिफिट कि आई नो अबाउट दीज थिंग्स एंड आई कैन talk about these things provided with like facts and figures. I'm not talking out of thin air. तो वो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था. और इस साल आई थिंक मैंने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड कि बाकी दोनों पेपर्स या फिर बाकी तीनों पेपर्स में राइटिंग मोर में वर्क, बट यहाँ पे यू हैव टू सब्सटैंटिएट योर आंसर्स और आपको एक अच्छा डेटा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाना पड़ेगा अपने. सो दिस इज वन थिंग, आइदर आप डेटा यूज करो, आइदर आप चार्ट यूज करो, आइदर आप रिपोर्ट्स यूज करो, या फिर आइदर आप कमिटी लिखो, बट राइट समथिंग क्रेडिबल. यहाँ पे जिब्रिश नहीं चलेगा. दिस इज आई हैव फाउंड इन माय एक्सपीरियंस. yes 100%. नेचर ऑफ क्वेश्चन इजी है, कोई भी 10-10 पॉइंट ब्रेनस्टॉर्म कर देगा. Exactly. सबको सब पता है. यस, तो इसलिए जितना ज्यादा स्पेसिफिक आई थिंक जाना है उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और थीम्स भी रिपीट हो रहे हैं ना, तो सबको पता है, पीपल आर कमिंग प्रिपेयर्ड. credible sources I think यूज करने से examiner will appreciate. They will say कि भाई इस बंदे ने efforts put किए हैं. He or she has went to the most official and credible resources to put into this exam, and I think that will be appreciated. And इसमें गलत डेटा
बिल्कुल भी मत Bluffing डालिए, करने बिल्कुल के- मत करिए, आउटराइट ब्लफिंग तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसी चीज पे आपके ऊपर वाली कॉपी या नीचे वाली कॉपी ने लिखा होगा लिखा होगा और वो चल पता चल जाएगा Yes, इमीडिएटली। सो प्लीज डोंट डू दैट, आई थिंक वो ब्लंडर हो जाएगा इस पेपर के लिए। ठीक है। दिशांत, एक मेरा सवाल था ऑनर रिलेटेड फ्रंट GS3 में। आई थिंक सबसे लेंथीएस्ट टू प्रिपेयर पेपर है, सबसे ज्यादा सिलेबस है, लेकिन सबसे कम मार्क्स है। क्या लगता है आपको, व्हाट इज लैगिंग बिहाइंड? राइट। आई थिंक जैसे लैगिंग बिहाइंड में हमने यही बोला सबसे पहले। आई थिंक लोग, हमने जैसे बात की कि रिपीटेड थीम्स है, उसके बावजूद लोग अपने नोट्स उतने ज्यादा अपडेटेड और उतने ज्यादा एनरिच नहीं रख रहे हैं। जैसे अब मैंने जब नोट्स बनाए तो 22 में मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए, तो तब श्रुति शर्मा मैम के नोट्स और कॉपीज वर आउटस्टैंडिंग। राइट। तो वो कॉपीज देख करके मैंने अपने नोट्स बनाए। उसके बाद इस बार जब मेंस लिखना था और पिछली बार, तो अनिमेश प्रधान सर के नोट्स मैंने रेफर कर लिए। तो उसमें से इतना मुझे नेक्स्ट लेवल का वैल्यू एडिशन मिला। जैसे छोटी छोटी चीजें, अब साइबर सिक्योरिटी में एक इंटरनेशनल टैलेंट मैनुअल है, तो लोग लिख के आ रहे हैं। आई थिंक वो मेरे नोट में होना चाहिए कि इस तरह से इंडिया भी जो एक मैनुअल अडॉप्ट कर सकता है। दिस इज समथिंग व्हिच आई डिडंट राइट, राइट। तो मुझे भी नहीं पता थी। ये मेरे लिए भी वैल्यू एडिशन है अभी। यस। फिर देखो, गुलशन कुमार कमेटी और इंद्रजीत राव कमेटी तो सब लिखने लग गए हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट ये सब चीजें नहीं। तो आई थिंक इन थीम्स एंड साइबर सिक्योरिटी में केरला का जो साइबर डोम प्रोजेक्ट है, राइट राइट, वो लिखना आई थिंक मैंडेटरी हो गया अब। दैट इज नॉट वैल्यू एडिशन एनीमोर। 2 मिनट और बात करेंगे हम 10-12 वैल्यू एडिशन की चीजें एग्जैक्टली पूछेंगे, है ना? एग्जैक्टली। कि ये है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। आई थिंक बहुत अच्छे नोट्स इज व्हाट इज लैगिंग। ओके। स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट मेकिंग दोज नोट्स, एंड देन देखो नोट्स बन गए ना, उसके बाद आपको उसको रटना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रिलेटिवली इजियर इन दिस, क्योंकि इसमें कोई कन्वोल्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। तो व्हाट यू आर सेइंग कि बच्चों को एफर्ट डालना पड़ेगा नोट्स खुद से बनाने में, डिपेंडेंसी कल्चर विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क। और ग्रेजुअली टाइम के हिसाब से आपको विल हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर नोट्स बिल्कुल बिल्कुल 100 जस्ट टू गेट अहेड ऑफ योर कंपटीशन। definitely. And second point is consciously putting data, facts, examples in your points. इनिशियल लेवल पे जब आप आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है, थोड़ा सा जेनेरिक होते जाएगा, बट और बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम कैसे ऐड करें वो डेटा को। तो वही है कि कॉन्शियसली ऐड करना है। आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज करोगे और टॉपर कॉपी से कंपेयर करके लिखोगे, आपको दिखेगा कि अगर वो लिख रहे हैं तो वो कॉन्शियसली वो ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं, कॉन्शियसली वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन और हेडिंग के बीच में उन्होंने वो एक फ्लो चार्ट बनाया है, उन्होंने कोई प्रोसेस दिखाया है, उन्होंने कोई डायग्राम ऐड किया है। तो कॉन्शियसली ये पूरे पेपर में आपको ये चीज करनी है। So I'll try to depict it by an example. Okay. For example, इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम लोग इंसर्जेंसी की बात करें, तो इंसर्जेंसी का अगर हम लोग वे फॉरवर्ड लिखेंगे, तो वहां पे हमारा पहला रिकमेंडेशन होगा कि भाई डी रेडिकलाइज द यूथ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन हुआ है। सो इफ यू आर जस्ट राइटिंग कि भाई वी हैव टू डी रेडिकलाइज द यूथ, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। राइट। यहाँ पे आपको यू हैव टू गो वन लेवल डीपर, आपको इसमें महाराष्ट्र मॉडल लिखना पड़ेगा। ऑपरेशन पिजन। यस, उसमें 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं, कम्युनिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके स्कूल के इकोसिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है, एनजीओस को इन्वॉल्व किया जाता है। सो एक स्टेक होल्डर बेस्ड महाराष्ट्र मॉडल ऑफ डी रेडिकलाइजेशन। So this is something which will convey a sense of deep understanding to the examiner, and I think this will get appreciated as to what your competitors have written. 100%. Yes, Dishant, please continue. बिल्कुल वही बात है ना। आई थिंक क्योंकि हम इतना इस चीज पे एम्फेसिस डाल रहे हैं ना, अब इस चीज पे फोकस करने से आई थिंक वो देखो आउटराइटली आप कुछ 120 नहीं लाने वाले हो केस3 में। हो सकता है कि कहीं मार्किंग भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव एंड पे हो, बट हमें वो 0.5 एक्स्ट्रा करके 90 to 100 की रेंज में आना है। जो 75 का हमारा बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है उसके लिए, तो वो इन्हीं चीजों से आएगा जब हम इस तरह से डेटा पुट इन करेंगे, एग्जाम्पल, डायग्राम्स और वो सब चीजें पुट इन करेंगे। और जो क्वेश्चंस आउटराइटली नहीं आते उसका लोड, अब जैसे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पता है नहीं आएगा, बट अगर हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके लेंथी कंपाइलेशंस पढ़ने में और उसकी चीजें कलेक्ट करने में, है ना। अब एआई है तो अगर हम एआई में घुस नहीं सकते पूरा ये एक्सपेक्ट करके कि एंड आई थिंक आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा फॉर अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस। राइट। फॉर एग्जांपल 2022 में गॉथेनबर्ग
प्रोटोकॉल के ऊपर हाँ, क्वेश्चन आया था, right. बट उस क्वेश्चन में हिंट था, स्मॉग का एक हिंट था, तो वहां पे आपको उससे लिंक कर पाना, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट है ना उस टाइम पे एग्जाम में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो कॉमन सेंसिकल थिंग टू हैव। आई थिंक सो आप हर कुछ प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो, सबके पास लिमिटेड टाइम है, आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा वॉट एवर यू हैव रिटन। आई थिंक इस बार भी तो आया था COP21 पे क्वेश्चन था एनवायरमेंट में। पंचामृत का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ, अब उसमें भी रिवर पॉल्यूशन आई थिंक पूछा गया लास्ट ईयर आई थिंक। हाँ। सो इवन इन जेनरिक क्वेश्चंस आई थिंक कंपटीशन और बढ़ जाता है। राइट आपको, क्योंकि रिवर पॉल्यूशन पे सब लोग लिख देंगे, आपको ऐसा कुछ लिखना है जो बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे फास्टैग का क्वेश्चन आया था, यस, फास्टैग एंड व्हिच टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस इट। तो उसमें मैंने बढ़िया से डायग्राम बनाया, मैंने टोल नाका बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, मैंने फास्टैग का टैग दिखाया कैसा होता है, व्हिच टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस इट में मैंने दिखाया कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो वो मैंने बता के बताया, क्योंकि मेरे पास अब कंटेंट पता है 5 से 10 पॉइंट का ही है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये होने वाला है, इससे रिप्लेस होने वाला है। RFID टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें कीवर्ड्स हमने याद कर ली, ये सबने याद करी है, सबको पता है फास्टैग, RFID, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, बट अब हम अलग से कैसे बताएंगे? तो इसमें आई थिंक ये करने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है तो डायमेंशन बढ़ाओ इसमें। RFID कहाँ शॉर्टफॉल कर रहा था, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, क्या कोई देश अगर इसको यूज कर रहा है ऑलरेडी उसका नाम आप बता दो, इसको यूज करने के क्या फायदे हो सकते हैं, एंड लास्टली चेरी ऑन द टॉप, क्या सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी से भी बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है हमारे पास फॉर फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक एंड पे उसको नोट करते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हुए आप उसको एंड कर सकते हो वहां पे। बिल्कुल challenges, limitations, way forward. फ्रेमवर्क ही हो गया। Got it, yes. ब्रॉडली अगर हम इस अप्रोच से आंसर्स को अटेंड करने, स्पेशली ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को, कहाँ दिक्कत आ रही थी, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, और जो करेंगे उसमें भी अगर चैलेंज आए तो व्हाट शुड बी अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर। और डायग्राम बना के हमने हमारा प्रेजेंटेशन और बढ़िया एग्जैक्टली, yes, वो नॉवेल्टी एक ऐड हो गई और एग्जामिनर को भी कन्वे हो गया कि टेक्नोलॉजी हम अच्छे से समझते हैं। यस, वो इम्पोर्टेंट वो 10 मार्क के क्वेश्चन में 4.5 मिल जाने हैं, हाँ, जबकि बाकी को 3.5 मिलेंगे। एग्जैक्टली, हमारा टारगेट ही है कि 1 मार्क ज्यादा है इसमें। आई थिंक GS3 में 100 लाना इज अ गुड इनफ अचीवमेंट आई वुड से। आई एग्री, बहुत मुश्किल है। So I think we can move to the next segment also, where we discuss about answer writing for GS3. And इसमें मैं specifically चाहता हूँ कि आप लोग बात करें कि GS3 में अगेन जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें मार्क्स आते हैं। Like I myself have gotten 110, 115, and I knew for a fact कि this is something which is not replicable in the actual examination. तो उसको भी किस तरीके से टैकल किया जाए जब स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है मेंस के लिए और टेस्ट सीरीज दे रहा है, बिकॉज इवेल्युएशन में नॉट बी नेसेसरीली इक्वलेंट टू UPSC स्टैंडर्ड्स, राइट? तो वो भी एक चीज आप उस पर भी लाइट थ्रो करिएगा विद आंसर राइटिंग अप्रोच। आई थिंक ये ट्रू है आपकी बात, 110 115 आएंगे एंड वो रियलाइजेशन जरूरी है। एंड इसमें हम वो टेस्ट सीरीज को अक्रॉस GS देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज का रोल, अपना रोल है कि मेरी डिसिप्लिन्ड वे में जो है मैं 3 घंटे की टेस्ट अटेम्प्ट हो रही है और मेरे को एक थोड़े से रिलायबल क्वेश्चंस मिल रहे कि हो सकता है ये आ सकता है ना? उसमें भी अच्छी कोचिंग्स के, कुछ तो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि उसका चेकिंग ठीक है, अगर कुछ मिल रहा है 10 मिनट लगेंगे आपको पन्ने पलटने में, बट अगर उसका मॉडल आंसर है उसमें से अगर आपको कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट मिल रहा है तो ये अप्रोच है, उससे आप सेल्फ इवैल्यूएट करो। और अगर आपका कोई स्टडी पार्टनर है, यूजुअली मेंस में सबका 1-2 जनों का पीयर ग्रुप बन जाता है ना? अगर नहीं है तो ChatGPT है, नहीं है तो समझो ChatGPT भी है, एंड ऑप्शन वही है, बट आई वुड स्टिल से कि कोई अगर मिल जाए तो वो बेटर है, ताकि आप एक कंपेयर अच्छे से कर सकते। एंड दिस इज नॉट नेसेसरली इन ऑफलाइन मोड, आप डिजिटली भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यस। तो जैसे पिछले अटेम्प्ट में डिजिटली हम भेज देते थे एक दूसरे की कॉपीज, और कुछ कोचिंग्स जो है उनकी वो टेस्ट की बेस्ट कॉपीज भी अपलोड कर देते हैं। तो आई थिंक 15-20 मिनट्स ऑफ ग्लैंसिंग अराउंड जस्ट टू सी वेयर यू आर हैविंग अ शॉर्टफॉल, और दूसरा सेल्फ इवैल्यूएशन में ये चीज कि अगर उसके मॉडल आंसर में ये डेटा पॉइंट या ये चीज है तो मेरे ये पॉइंट में क्यों नहीं आया। और एक चीज कर सकते कि वो क्वेश्चन को अपने नोट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे नोट्स में ये चीज था जो मैं डालना भूल गया, तो रिवर्स लर्निंग में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक अगर वैसा कुछ दिख रहा है, आई थिंक यू शुड रिफाइन द एंटायर सब्जेक्ट। अगर इंटरनल सिक्योरिटी के 1-2 क्वेश्चंस में आपको दिखा कि बहुत सब स्टैंडर्ड आंसर्स लिखा है जो कि आपके नोट्स में ही नहीं था, तो आप लिख ही नहीं पाते नेचुरली, तो आई थिंक आपको पूरे नोट्स पे काम करने की जरूरत है वहाँ पे। दैट शुड बी अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर यू। So
So I think this is it for GS3. I think. Right. Covered everything, I think. मेरे एक और क्वेश्चन था, एंड प्रॉब्ली दिस रिलेट्स मोर टू अस, कि GS3 में इकोनॉमिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट एंड इट हैपेंस टू बी आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो. तो उसमें किस लेवल तक लाइक राघव आपने भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करी इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स या इकोनॉमिक्स की लर्निंग्स एंड नोट्स को GS3 के आंसर्स में? क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, वी बोथ रेड इट, तो हमारे लिए एक ये चैलेंज भी होता है कि हम वो ज़्यादा टेक्निकल भी ना बना दे कि एग्जामिनर को लगे कि ये आउट ऑफ हैंड जा रहा है. तो वो किस तरीके से आपने अप्रोच किया उसको? यार आई थिंक अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, देयर इज अ स्कोप कि आप उसका यूज कर पाओ, बट आई थिंक ओवर डूइंग इट वो बैकफायर करेगा. फॉर एग्जांपल इज अ PLI का क्वेश्चन था, उस पे अगर आप लुइस मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आओ कि भाई क्यों इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज अ वेरी जेनरिक टॉपिक, लुइस मॉडल ऑफ ग्रोथ. राइट. लेकिन आप उसमें कैल्डोरियन थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख के आओगे, आई थिंक दैट विल बैकफायर. एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई ये हवा की बातें कर रहा है, ज्ञान दिखाना चाह रहा है. एग्जामिनर पक चुका है, सुबह से ज्ञान की बातें देख रहा है. सो आई थिंक ही और शी इज नॉट लुकिंग फॉर दैट. ही और शी इज जस्ट लुकिंग कि भाई एक जनरल स्टडीज का पेपर है, बच्चे इसमें कितना ज्यादा जनरल चीजें पुट कर रहे हैं. जनरल में डेटा, फैक्ट, कमिटी रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, गॉट इट. बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज. किस पे आप अपना फोटे बनाओ रादर देन राइटिंग कॉम्प्लेक्स चीजें जिसको एग्जामिनर को एक बार गूगल करके देखना पड़ जाए. एग्जामिनर का मूड खराब होगा, नंबर घट जाएंगे. सो आई थिंक वी शुड refrain from doing that. I agree. सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में, अब उसमें आप फोटोलिथोग्राफी बना के आ जाओ तो आई थिंक एग्जामिनर विल नॉट बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट आंसर. आई एग्री. एंड आई थिंक इसमें जो हमने पेपर 2 और पेपर 1 में जब हम लिंकेज करते हैं, स्पेशली फॉर पेपर 2 जहाँ पे हम पेपर 1 से लिंकेज करते हैं, तो वो वाली स्ट्रैटेजी आई थिंक कैन बी रेप्लिकेटेड फॉर GS3 टू सम एक्सटेंट. जैसे लुइस थ्योरी के बारे में आपने बात करी, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रॉब्ली कैन बी इंटीग्रेटेड. हैरोडोमर लिख के आ सकते हैं लिख सकते हैं. There is something that can be integrated to some extent in GS3. But I think these stuff, even if you're not writing, is not going to matter more. हाँ, provided अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वेल इनफ. कई बार शो ऑफ करने के चक्कर में गलत चीजें भी गलत जगह वो मत करिएगा, इट माइट बैकफायर. प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड. टेक्निकल हो गया. Agreed. Yes. तो वो प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बियॉन्ड दैट यू ऑल्सो हैव टू कंट्रोल हाउ यू आर मैनेजिंग कंटेंट इन GS3. So final leg of our discussion, ethics, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द मार्क्स विच यू कैन स्कोर इन दिस पेपर, एंड गिवन द फैक्ट कि इसको बाकी GS के तुलना में हल्का रिलेटिवली कम एफर्ट में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है. इट इज़ नॉट दैट टाइम एंड रिसोर्स हैवी, बट येट एट द सेम टाइम ये आपको अच्छा मार्क्स देने की पोटेंशियल रखता है. आई थिंक अ गुड मार्क्स इन एथिक्स कैन लैंड यू अप इन वेरी गुड स्कोर्स एंड इवन बेस्ट रैंक्स. तो एथिक्स का हम लोग क्या करते हैं, एथिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. थ्योरी सेक्शन, केस स्टडी सेक्शन, दोनों का बराबर बराबर वेटेज आता है. सो एथिक्स में विल बिगिन विथ थ्योरी. सो थ्योरी में व्हाट विल डू, दिशांत आप बताओ, धोनिश आप बताओ, देन आई विल समराइज द डिस्कशन. दिशांत प्लीज. Okay. So, as you rightly pointed out, 120 plus is a good mark. है ना. एथिक्स में 120 से कम है तो बहुत मुश्किल है, तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है पेपर में. 100 से कम है तो वो ब्लंडर ही है ये पेपर, है ना, क्योंकि टॉपर्स को 140 145 तक मार्क्स लिबरल है यहाँ पे, लिबरल है. तो आई थिंक वो समझना बहुत जरूरी है. एंड इसमें थ्रू ट्रायल एंड एरर मैंने ये पाया है कि सेक्शन ए ज्यादा लिख रहे हो, पहले लिख रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, तो मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं. All right. I don't know if you guys will I agree to that. Raghav, what about you? No, I had a different strategy here. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने जितनों का देखा भी है, सेक्शन ए अगर उन्होंने बढ़िया अटेम्प्ट किया है ना, तो उनके मार्क्स में आई डू अग्री विथ यू कि सेक्शन ए आपने अच्छा से लिखा है तो आपके मार्क्स आएंगे, बट उस ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा. आई रोट केस स्टडीज फर्स्ट, देन आई मूव टू द थ्योरेटिकल सेक्शन. उसका एक जो न्यूआंस जो मैंने इस पेपर में गलती करके रियलाइज किया was that केस स्टडीज पहले लिखने के बाद कहीं ना कहीं टाइम क्रंच की वजह से मेरे लास्ट के 3-4 सवाल सेक्शन ए के ठीक से ब्रेनस्टॉर्म नहीं हुए. All right. और मेरी क्वालिटी बहुत खराब हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सॉ 10 मार्क ड्रॉप एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स, विच चलो ठीक है, हो गया. I think it is good that we have difference of opinions and we still ended up getting good marks. Right. No, but see, I scored less because वही टाइम मैनेजमेंट मैंने गड़बड़ कर दी. So paper attempting strategy हम लोग towards the end भी एक बार discuss कर लेंगे. Okay. Coming to the theory part का resources. फिर सेक्शन ए में तो थियरीज में आई थिंक
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड टेक इट मोर ऑफ दैट कि आपको आपके नोट्स जो है बहुत ही सॉर्टेड रखने। मैंने जो किया था 2020 टॉपर शुभम कुमार सर थे, उन्होंने टेबल फॉर्म में नोट्स बना दिए थे एंड आई थिंक मैंने देखा कि हर साल बहुत सारे टॉपर्स के वो टैबुलर नोट्स थे जिसमें एथिकल कीवर्ड, कोट्स रिलेटेड टू दैट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, तो आपने इंटेग्रिटी में वो सब कलेक्ट किया कि डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग, या कोई गांधी जी के कोट्स कलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद एग्जांपल्स रिलेटेड टू इंटेग्रिटी, और उसके बाद पर्सनल एग्जांपल्स एक आध कलेक्ट Yes. कर सको तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक उतना स्कोप मिल रहा है आजकल वो लिखने का। उसके बाद उसका जो कंटेंट मैटर है, इंटेग्रिटी के डायमेंशन जो है, अफेक्ट बिहेवियर, कॉग्निशन, वैसी सब चीजें हो गई जो एटीट्यूड की, मतलब वो सब चीजें आपने जमा कर ली, उसके थोड़े बहुत थियोरेटिकल पॉइंट्स जमा कर लिए। तो ये टैबुलर फॉर्म में मैंने कीवर्ड वाइज नोट्स बनाए जो मैं फिर मेमोराइज करके रखता था, और मेरे को पता ही है कि मेरे पास ये कलेक्शन ऑफ कोट्स और कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स है, तो उसको मैं अपने सेक्शन ए के आंसर में यूज करूंगा। प्लस मैंने बहुत सारे कोट्स, कीवर्ड्स और वो सब चीजों का जो है कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, जो जिनको मैं मेमोराइज करूंगा और जिनको मैं कॉन्शियसली अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करूंगा। तो मुझे कोई उसके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन ए इज दैट यू नो हाउ टू अप्रोच द आंसर्स। तो उसमें जैसे थोड़ा सा कम लिखेंगे हम तो चलेगा, जीएस में हम डेंसिटी भर देते हैं, 6 पॉइंट भरते हैं। एथिक्स में अगर आपके 4 पॉइंट्स भी है एक सब हेडिंग में या 5 है तो भी दैट इज गुड, क्योंकि आपको पेपर कंप्लीशन इज आल्सो अ चैलेंज, बट हर एक पॉइंट के बाद एग्जांपल आना बहुत जरूरी है। So I think I have a slightly different opinion than you. I think it is necessary to just inform the जनता कि भाई एक ही अप्रोच काम नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि आपने बताया कि पहले 2 कंटेंशन हमारा है, नंबर ऑफ पॉइंटर्स कितना लिखें और एग्जाम्पल से कितना सब्सटैंशिएशन करें। सो आई एम समबडी जिसने इस बार एथिक्स में नंबर ऑफ पॉइंटर्स बढ़ाए। ओके, आई थिंक आई हैव बीन रिवॉर्डेड बाय दैट, बट हाँ मैंने जिब्रिश भी नहीं लिखा है, आई हैव रिटन गुड गुड पॉइंटर्स। पॉइंट्स, राइट। और दूसरा है कि भाई लोग पूछते हैं कि सर हर स्टेटमेंट के बाद एग्जाम्पल डालना है या फिर कैसे क्या करना है। सो एथिक्स में आई थिंक 60 to 70% केसेस में यू शुड ट्राई, जहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, कि हर स्टेटमेंट लिखने के बाद एग्जाम्पल्स ड्रॉप करो। राइट, एंड किसी क्वेश्चन में इफ यू हैव द डर्थ ऑफ एग्जाम्पल्स तो आप पॉइंटर्स लिख डालो। मान लो आप 6 पॉइंटर्स एक सेगमेंट में लिख रहे हो, दूसरा सेगमेंट दूसरे पेज पे लिख रहे हो, तो 6 में से एटलीस्ट आप 2 से 3 स्टेटमेंट्स में एग्जाम्पल लिखो एंड उसी पेज के नीचे वाले पोर्शन में एक एग्जाम्पल को सब्सटैंशिएट करके लिखो। सो आई थिंक दोनों अप्रोच यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एग्जाम्पल्स। I am someone who wrote more number of pointers. Okay. There could be someone who have written lesser number of points, but might be उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही हो कि एग्जामिनर को उन्होंने काफी हद तक इम्प्रेस कर दिया हो। मीट हो गई हो, Yes. प्लस द रिक्वायर्ड वैल्यू एडिशन जो Yes, yes, एंड इन सेक्शन आई फील क्वालिटी इंट्रोडक्शंस एंड क्वालिटी कंक्लूजन्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. तो स्टार्टिंग देम ऑफ विद कोट्स एंड कीवर्ड्स आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Donish, if you would like to add something. I think broadly he's covered things, but some of the things that I kind of learned through Topper Copies was ki integration of quotes is very important in your introductions and conclusions. And one golden advice that I received from one of my seniors in preparation was that in ethics, each aspirant should have a unique list of examples for bureaucrats, for things that they can add into their points, and that thing should be unique. Because if you write repetitive examples, अशोक then it खेमका is सर को कितनी बार यूज करोगे? exactly Ashok Khemka sir, Durga Shakti Nagpal ma'am, all of these examples No offense to them, they've done great in their life. 100%. But नहीं कुछ नया हाँ. लाओ ना पेपर में एग्जाम। This is purely from an examination perspective. Yes. If you want to fetch more marks, then you probably have to introduce some novelty, and that is through research. सही बात है। अब कंपैशन में आपके पास अगर कंपैशनेट कोई कोडे मॉडल ही एग्जांपल है तो अब नहीं चलेगा, आपको और यूनिक कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। Exactly. एंड आई थिंक इसमें तो कलेक्ट करना ये सब चीजें इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट, मच मोर इजियर टास्क एथिक्स में कलेक्ट करना। जैसे आपका वो जो स्ट्रेटेजी है, सोशल मीडिया इज फिल्ड विद एग्जांपल्स ऑफ एथिक्स। आप बस 2-3 ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे या ह्यूमंस ऑफ इंडिया जैसे पेजेस फॉलो करो, Right. उसमें से आपको Yes. बहुत सारी चीजें The better India. India, even better India. यस यस 100%. So I'll summarize this topic with my own strategy. मैंने कहाँ से और पेपर में क्या क्या लिख के आया था मैं। Intro and conclusion, I think if you have a quote with yourself for both the intro and conclusion. For example, अगर integrity की बात है, integrity में आप definitional ways लिख दो। Integrity is something which you're doing when nobody is watching you. And
एंड में लिख दो इंटेग्रिटी का एग्जाम डेफिनेशन जो महात्मा गांधी जी ने दिया था, व्हाट यू डू, व्हाट यू से एंड व्हाट यू बिलीव आर इन सिंक्रोनी। तो आई थिंक दोनों तरफ एक कोड बेस्ड अगर आपका रहता है तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड। कमिंग टू द एग्जाम्पल्स कितना करना है यूज, आप आइदर हर पॉइंटर्स के साथ लिख सकते हैं इफ यू डोंट हैव द डर्थ, बेस्ट केस सिनेरियो। अगर डर्थ हो रहा है तो जो आप 6-7 डायमेंशन एक एस्पेक्ट में लिख रहे हो उसमें 2-3 में एग्जांपल्स लिखो और एक एग्जांपल एक्सप्लेनेटरी लिख दो लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज के नीचे में। एग्जांपल्स कहाँ से लाना है, कौन से यूज करना है, इस पे आई थिंक बात करना जरूरी है। एग्जांपल्स 2 टाइप के होते हैं, रादर 3 टाइप्स के होते हैं। एक एग्जांपल होता है जो आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनिंग समथिंग फ्रॉम योर ओन लेंस। अगर क्वेश्चन इंटेग्रिटी का है, फॉर एग्जांपल if I do not cross the road when traffic light is red, even when there is no traffic on road, that can be an instant example of integrity. वो आपने वहां पे सेल्फ मेड किया है। एग्जामिनर को सब कुछ कन्वे तो हो रहा है बट दिस इज समथिंग व्हिच अदर्स माइट नॉट बी राइटिंग, सो आई थिंक दैट माइट गेट अप्रिशिएटेड एज वेल। दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिस्ट किया था, अनुकृति सिंह का मैंने लिख के आया था, इलेक्ट्रिसिटी पे गांव दूर दराज इलाकों में उन्होंने पहुंचाया था। फिर से पामे आर्मस्ट्रॉन्ग सर जो कि नॉर्थ ईस्ट में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किए थे बाय यूजिंग क्राउड फंडिंग। सो ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल इज अनदर सेट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू कैन पुट। थर्ड डोमेन होता है, वो बहुत बड़ा डोमेन होता है जिसमें नॉन ब्यूरोक्रेट्स का आप एग्जांपल डालते हो, स्पोर्ट्स पर्संस का आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कोटेड विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन फॉर हिज वर्क एथिक्स। Even on his bad days, he would turn up at the gym at 6 a.m. sharp in the morning. He had quit fast food. He does not advertise any alcohol, just out of respect for his game. इसके बाद आप सोशल रिफॉर्मर्स का लिख सकते हो, राजा राम मोहन रॉय लिख सकते हो, या फिर मदर टेरेसा का आप एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद आप सोशल वर्कर्स का एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर कर जो अंडमान निकोबार में शॉम्पेन और निकोबारी स्ट्राइब के लिए काफी विदाउट एनी कॉमर्शियल गेन काम किए थे, उनका एग्जांपल डॉक्टर रतन कर। ही इज अ वेरी स्टॉलवर्ट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री जिसको आई रिवेयर अलॉट। डॉक्टर श्री SR शंकरन जी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ट्राइबल्स के लिए निकाल दिया। सो राइटिंग दीज काइंड्स ऑफ एग्जांपल, फ्रीडम फाइटर्स का आप लिख सकते हो, हिस्टोरिकल फिगर्स फॉर एग्जांपल मार्टिन लूथर किंग का आप लिख सकते हो, ज्योतिबा फुले, मतलब अक्रॉस द डायमेंशन। जस्ट मेरे कहने का ये मतलब है as many dimensions as you can cover for your ethics examples, आपके examples की लिस्ट उतनी ज्यादा enrich होती जाएगी। पॉइंटर्स पे हमने बात कर लिया, एग्जाम्पल्स पे बात कर लिया, कोट्स के ऊपर बात कर लिया हमने। फिर उसके बाद डायग्राम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एथिक्स में। एथिक्स में हर क्वेश्चन में ट्राई करो, हर टॉपिक, जैसे 7 टॉपिक्स है एथिक्स में और उनमें लगभग जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यू शुड हैव प्री मेड डायग्राम जो कि आप चिपका के आओगे। आई हैड प्रिपेयर्ड सम ऑफ देम, आई विल पुट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आई थिंक दिशांत एंड धोनेश विल आल्सो डू द सेम। इसके बाद आप कल्चरल कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। इंडिया का कल्चर जो इतना वैराइड और इतना ब्रॉड हॉराइजन वाला है, आई थिंक उसको मिल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो कि अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है। कल्चरल कंटेंट से क्या क्या आ सकता है, हमारा रिलीजन है। फॉर एग्जांपल जैनिज्म से हम अहिंसा का एग्जांपल निकाल सकते हैं। उसके बाद फैमिली सिस्टम से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार, ये वाला एस्पेक्ट हम लोग डाल सकते हैं। स्कूलिंग सिस्टम से भाई जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स कराते हैं जिससे टीम बॉन्डिंग, एग्जैक्टली दिल्ली स्कूल में जो हैप्पीनेस क्लासेस चलाई गई थी वो यूज कर सकते हैं। सोसाइटल लर्निंग्स हम लोग यूज करते हैं, फोक कल्चर्स के एग्जांपल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडियन लिटरेचर से भी हम लोग महाभारत गीता से क्या हम लोग सीखते हैं। सो इंडियन कल्चर इज अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड अंडर एक्सप्लोर्ड टॉपिक, आई वुड से, जिसको आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हिंदी कीवर्ड्स का भी बहुत अच्छा रोल है यूज करने का। जैसे प्रॉबिटी को हम सत्यनिष्ठा कहते हैं, तो आपने उसको बस सत्यनिष्ठा इस तरह से लिख लिया उसको तो वो बहुत एनहांस कर देगा। इवन कर्तव्य निष्ठा, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, निष्काम कर्म टाइप पे टर्मिनोलॉजी जो इवन भारत सरकार एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑफ इंडिया आर आल्सो प्रमोटिंग टुडे। विद्याधनम सर्वधर्म कर्मयोगी 100%। यस। सो एथिक्स में वी हैव दिस लेवरेज की एंड लीवे की, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं है। ओवरऑल क्रिएटिविटी का स्कोप ज्यादा है इस पेपर में। इट इज ऑल अबाउट हाउ मच कैन वी कलेक्ट एंड देन जस्ट यूज इट। सो सेक्शन है, थ्योरी सेक्शन में मोटा मोटी यही है। सो विल नाउ शिफ्ट टू केस स्टडीज। सो केस स्टडी में एनीथिंग पर्टिकुलर व्हिच यू वुड लाइक टू ऐड ऑन एज टू व्हाट इन एडिशन यू वुड लाइक टू से जो कि मार्केट में अभी नहीं हो रहा है?
राइट केस स्टडी में आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज कि हम ऑप्शंस खोल देते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स कर लेते हैं, ये सब चीज पे फोकस नहीं करना है। 4 पेज की केस स्टडी है, अगेन आई फील केस स्टडीज को भी 3.5 से 4 पेज एंड टू एंड भरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ एंड डेंसिटी इज ऑलवेज अ मैटर इन स्कोरिंग गुड। फिर केस स्टडीज में जो है कोर्स ऑफ एक्शन भी आप 3-4 लाइन का चाहे लिखो, बट वो कोर्स ऑफ एक्शन का जो जस्टिफिकेशन है कि व्हाई आर यू डूइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, आई थिंक दैट इज वेयर द रियल गेम लाइज। और उसी में आप जो है जस्टिफाई कर सकते हो, उसी में आपके पास स्कोप है सारी एथिकल कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज और थियरीज का। फॉर एग्जाम्पल, I will do this because my code of conduct rules 1967 have mandated me to do this. I will do this because as per the mirror test, I want to be a confident person with integrity to look at my या फिर इसको आप कल्चरल कंटेंट से लिंक कर सकते हो, जस्ट बिकॉज माई रिलीजन सेज सो, जस्ट बिकॉज माई फैमिली सिस्टम सेज सो, जस्ट बिकॉज माई एजुकेशन सिस्टम सेज सो। right. एग्जैक्टली As per Rawls theory of justice, Yes. it is for the interest of the downtrodden, वैसा करके Yes. था। गांधी के कार्डिनल सिंस में से ये एक है, Yes. सिंस में से, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। Not right. तो यहाँ पे असर्टिव लैंग्वेज यूज करके आप आपके स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे हो। आई थिंक वो पढ़ के एग्जामिनर को लगेगा कि सच में इन्होंने प्रॉपरली सोचा है। he or she speaking from the heart, not just for the sake of speaking Yes, it. Right, right. एंड ऑल दैट यू हैव कलेक्टेड, वो यहाँ पे यूज करने का स्कोप आपको दिखता है। सेम गोस फॉर एथिकल इश्यूज या एथिकल डिलेमास जब हमें बताने का पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लार्जली 60% ऑफ द 6 केस स्टडी है तो 4 में तो हो गई एथिकल इश्यू या डिलेमा बताओ। तो आप जब केस स्टडी पढ़ रहे हो, वही टाइम पे आप वहां पे सर्कल करके हाईलाइट कर सकते हो कि इस तरह के इश्यूज मेरे को पुटअप करने हैं। और 7 से 8 इश्यूज तो आपको डालने ही चाहिए, उसका उतना स्कोप तो होता ही है। उसमें अब जैसे चाइल्ड लेबर का केस है, तो उसमें आप बता रहे हो अच्छे से कि आर्टिकल 21 उसकी ये वायलेट हो रही है, स्टेट जो है अपने वेलफेयर फंक्शन में फेल हो रहा है, तो ये सारे एथिकल इश्यूज है। Social contract is at fault. कॉन्ट्रैक्ट इज एट अ प्रॉब्लम। पेरेंट्स की जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। रेस्टोरेंट ओनर वो चाइल्ड का कमर्शियल यूज कर रहे हैं, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी वाली बात आ गई। Very Right, nice. right. Gandhian think- sense. हाँ, यस। तो आई थिंक इस तरह की लैंग्वेज आपको यूज करनी है एथिक्स की केस स्टडीज में। ऑप्शंस, मेरिट डीमेरिट्स तो सब खोल लेंगे, उसमें उतना फोकस नहीं करना है। Focus on what you have to do additionally as to what your competition is not doing. Yes, so your very strong introductions and conclusions here also non-negotiable, but your ethical issues and your justification, I think that is where the real game lies. आई थिंक एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा, जो डायलेमास कभी कभी पूछते हैं, कई बार एग्जाम मोमेंट में डायलेमा बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि 20 डायलेमास आप प्रिपेयर करके जाओ, वो हैंड्स ऑन रहेगा आपका एग्जाम मोमेंट पे। हाँ, सो धनुष वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग। I think in addition to what Dishant has said कि एक जो चीज़ आई थिंक मैंने सीखी थी निमेश प्रधान सर की कॉपी से, कि जिस तरीके से वो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके उसको रिप्रेजेंट करते थे थ्रू अ पाई चार्ट, कि वो डिपिक्ट कर देते थे कि इस थ्रू द पाई चार्ट कि who are the major stakeholders, so that person will get a large piece of the pie. So that Alright. kind of thing is very creative. या फिर one thing that I probably kind of came up with myself is कि seesaw मैं बना देता था, जहाँ पे morality और practicality को balance करना है whenever there is a corporate ethics का question, and other things that can be done Venn diagram के through, कि intersection of multiple considerations के बीच में ये issues lie कर रहे हैं ethics में, and then like in addition to what Dishant has said कि course of action में you can integrate a lot of things from other parts of your paper, GS 1, 2, 3 से, जैसे fundamental duties आप ऐड कर सकते हो course of action में, या फिर best practices across the world ऐड कर सकते हो course of action में। तो these are the things which will fetch you more marks, I believe. सो केस स्टडीज में इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल चाइल्ड का कोई इशू है, मुख्यमंत्री कन्या विकास योजना, कन्या उत्थान योजना, आप लिख सकते हो कि एज अ ब्यूरोक्रेट आई विल इंश्योर, या फिर इवन इफ यू आर नॉट अ ब्यूरोक्रेट, इवन इफ यू आर अ सोशल पर्सन, इवन इफ यू आर अ टीचर पोस्टेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट और अ प्लेस, सो आप बोलो कि आई विल मेक श्योर कि मेरे कैपेबिलिटी में जो भी रिसोर्सेज बस पड़ता है, आई विल ट्राई कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और सैचुरेशन हो मेरे डिस्ट्रिक्ट में। इफ यू आर नॉट अ ब्यूरोक्रेट, यू विल कंपेल और यू विल रिक्वेस्ट द ब्यूरोक्रेट कि सर प्लीज ये कर दो। इफ यू आर द ब्यूरोक्रेट, इट इज योर मोरल फल्क्रम, इट इज योर मोरल ड्यूटी कि आप उस चीज को करो। गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आप ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल लिख सकते हो कि किस ब्यूरोक्रेट ने कहाँ पे क्या किया है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे गरीबी है, एरिड सॉइल है, कल्टीवेशन मुश्किल है, तो देयर इज वन केस स्टडी इन झारखंड जहाँ
जहाँ पे एरिड सॉइल में भी या फिर जो नॉन प्रोडक्टिव सॉइल है वहाँ पे भी मिलेट्स को बहुत तेजी से ग्रो करके फार्मर्स का इनकम ट्रिपल या क्वाड्रपल किया गया था. दैट इज वेरी अनदर गुड थिंग जो आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो लिखने के लिए. उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस नॉन ब्यूरोक्रेट्स करे, जैसा कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल आप चिल्ड्रन का केस स्टडी हो या फिर एल्डरली का केस स्टडी हो, इनको प्रोडक्टिव यूज में सोसाइटी में वापस से रिहैब करने के लिए आप क्या कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सीबीएसई का एक नया इनिशिएटिव आया था जहाँ पे वो स्कूल्स में बच्चों और उनके जो नेग्लेक्टेड ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको एक कॉमन पेडिस्टल पे ला रहे थे. दिस इज वेरी इंप्रेसिव थिंग विच शुड फाइंड इट्स प्लेस इन द आंसर कॉपीज. सो आई थिंक जो भी आप इनोवेटिव कर सकते, यू शुड इन योर कैपेसिटी ट्राई टू डू ऑल ऑफ दैट. सो केस स्टडी का ये है अल्टीमेटली. आई थिंक वी शुड, हाँ प्लीज केस स्टडीज में आई थिंक 3-4 केस स्टडीज तो ऐसी आएगी जो कोर्स ऑफ एक्शन और उस पे 2-3 केस स्टडीज ऐसी आएगी जो अप्लाइड एथिक्स की बात करेगी. मीडिया एथिक्स हो गया या फिर वॉर एथिक्स हो गया, मेडिकल एथिक्स हो गया. 1-2 बार से मेडिकल एथिक्स की केस स्टडी आ रही है. तो आई थिंक इवन इन सेक्शन ए तो हम अप्लाइड एथिक्स के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स और वो सब चीजें जमा कर सकते हैं. जैसे मेडिकल एथिक्स में उनका हिपोक्रेटिक ओथ से लेकर के ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज है या ऐसे कोई कोड, नो हार्म प्रिंसिपल है, वही बिल्कुल. तो ये सब चीजें भी आई थिंक कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड रिगार्डिंग कोट्स, तो बहुत बार कुछ एक अप्रोच ये भी रहा है कि कोट्स को एंड में लिखो और कैसे भी लिख के कर दो, बट आई थिंक दैट इज नॉट राइट. कोट्स ऑल्सो अलाउ यू टू शो द ब्यूटी कि आपने किस तरह से इंटरप्रेट किया और कैसे आप कर रहे हो. एंड आई थिंक उसमें आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपीज में भी काफी अच्छे से उन्होंने एक पार्ट को एम्फेसाइज किया है कि अगर कोट का भी कोई काउंटर है तो वो भी आप 1-2 लाइन में मेंशन कर सकते हो ताकि आपका एक डेप्थ ऑफ थिंकिंग दिखे. ऑलराइट, वेल राउंडेड हो जाता है. गुड अप्रोच. राइट. आई थिंक फाइनली वी शुड डिस्कस कि भाई एथिक्स में टाइम क्रंच सबसे ज्यादा महसूस होता है. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? आई विल मेंशन माइन. सो मैं 1.5 घंटे का स्लॉट्स रखता था दोनों चीजों के लिए. तो 1.5 घंटे में पहले मैं केस स्टडीज रश थ्रू कर देता था. जो 5 मिनट मिलता है हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, उसमें मैं एक केस स्टडी पूरी पढ़ के रेडी रखता था. उसमें आई यूज्ड टू टेक अ हेड स्टार्ट कि भाई जैसी फॉर एग्जांपल हम लोग एक कन्वेंशनली 15 मिनट पकड़ के चलते एक 20 मार्कर की केस स्टडी करने के लिए. सो व्हाट आई विल डू कि जो मुझे 5 मिनट का हेड स्टार्ट मिला है, आई विल नॉट रीड माई सेक्शन है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है. सो मैं 5 मिनट एक केस स्टडी पूरा एंड टू एंड पढ़ डालूंगा और मुझे पेपर मिलते के साथ ही जो फर्स्ट 5 मिनट से 6-7 मिनट्स हैं उसमें आई विल हैव रिटन 1 केस स्टडीज. सो इसमें मेरे पास 7 से 8 मिनट का हेड स्टार्ट हो जाता था. तो 1.5 घंटा अप्रोच होते होते इवन कई बार हुआ मेरा 5 मिनट पहले भी एग्जाम में. लास्ट टाइम मेरा 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हुआ था, इस बार 6 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हुआ है. बट एग्जाम का जब मैं टेस्ट लिख रहा होता था मैं 40 मिनट एक्स्ट्रा लेता था. सो मैं क्योंकि उतना डिलीजेंटली टेस्ट नहीं लिखता था, मैं समय लेता था, पानी पीता था, दोस्तों की तरफ झांक लेता था वो क्या लिखते. सो दैट वाज नॉट माय आइडियल केस व्हाट आई वाज डूइंग. सो यू शुड प्लान समथिंग बिफोर हैंड इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई अपना एक स्ट्रेटेजी प्री मेड करके जाओ. एग्जाम में रिस्क मत लो. पेपर छूटना है, कैसे छूटना है, सब कुछ प्रिपेयर करके जाओ. आपका कितने बजे आप किस फेज पे रहोगे पेपर में, आई थिंक इसका एक बहुत सॉलिड प्लानिंग बहुत करके जाना जरूरी है. I think there are people who go end to end in ethics. For example, you both guys went section A then section B. I am somebody who did section B before section A. So there is no single way or no single strategy कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करो. You just write fast. I think ये जो बोली बात बहुत सही है. लाइक आई एम समवन कि जिसका सेक्शन है 1 hour 45 मिनट्स खिंच जाता था, तो मैं ऑलरेडी 15 मिनट के लॉस पे तो चल ही रहा हूँ और फिर मेरी हमेशा लास्ट की 2 केस स्टडी बहुत हरीड होती थी. सो दैट इज व्हाट हर्ट्स मी कि मे बी माय रियलाइजेशन ऑफ मार्क्स वाज इवन हायर देन व्हाट आई एम गेटिंग. yes. सो वो है, आप अगर टाइम पे ऑन टाइम कर रहे हो बेस्ट है, बट वो आपको थ्रू प्रैक्टिस फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड एथिक्स में आई थिंक प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिमाग खुला रख के जाना है ना, तभी जाके वो उस तरह से पॉइंट्स आएंगे. अगर जैसे 2022 का पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, PYQs में लेंथी था, लेंथी क्वेश्चंस थे, 2-3 लाइन तो कॉन्टेक्स्ट की दी हुई क्वेश्चन की. तो आई थिंक इसलिए बहुत सारे फिलर मटेरियल भी होते थे जिसको पढ़ने का बाद में पता चला कोई रेलेवेंस नहीं था. इस साल मेरे पास 2 मिनट बची थी और मेरा सेक्शन ए का एक लास्ट का सवाल बचा हुआ था. वो 2 मिनट तो मेरे को फिलर कंटेंट पढ़ने में ही चले गए, मैं आंसर ही नहीं लिख पाया. तो वो प्रैक्टिस आई थिंक बहुत जरूरी है. So I think this is it for ethics. I think ethics हो गया हम लोग. I think Raghav, we can, now that we're done with all the GS, I think if 5 minutes each we can take to highlight some of these essential questions like AI का use, handling distractions especially during the 2 months of mains, dealing with failure, and
अगर मेन समझो नहीं हुआ तो उसके बाद कैसे टाइम मैनेज करके कम बैक की स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट Right. we have given interviews and we have not cleared and then we have had to come back. So if we can address all of these parts, I think that would also So help. let me take one question कि failures को कैसे manage किया. So यार, see, I am somebody who has been grappling with health issues quite a bit. 23 में I had a severe health issue जहाँ पे मेरा मेंस खराब हुआ. I could not even appear for that exam. 24 में I gave interview, everything went filed in the interview stage. 10-11 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया. 25 में भी काफ़ी ज़्यादा क्रंचेस आए थे इन एवरी डिफरेंट सिनेरियो, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और इमोशनल, मेंटल, जो भी बोल लो, बिकॉज एक फेलियर का टैग लग गया था 24 में. आई फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. सो वहाँ से बट मेरे अंदर जो क्लैरिटी थी कि भाई आई हैड कम हेयर बाय हैविंग अ क्लैरिटी कि मैं 3 अटेम्प्ट सीरियसली दूंगा. अगर यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स में नहीं होगा तो आई विल थिंक फॉर सम प्लान बी. एंड इसको सस्टेन करने की एनर्जी मेरे अंदर आई बिकॉज आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विथ माई एफर्ट्स. आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बगल में मेरे रूम में मेरे को इनविजिबली बैठ के देख रहे हैं, विल दे बी प्राउड ऑफ मी और विल दे बी नॉट प्राउड ऑफ मी. मेरा टेस्ट वाली बात जो हमने की उसको करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड इफ़ यू आर डिलीजेंट, आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे, समाज को तो खैर छोड़ ही दो, खुद को झूठ नहीं बोल रहे हो, तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक. रिजल्ट्स क्या होगा अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं है. 2024 में मैं फेल किया, 2025 में इतनी अच्छी रैंक आ गई. ठीक है, वो एफर्ट्स रहे थे, लक भी था, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो मेथड इन द मैडनेस वाली बात है वो तो है. लोग पूछते हैं कि भैया डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो आई जस्ट से वन थिंग, आई थिंक आई विल patent this statement: don't chase motivation, chase discipline. I think मेरे से पहले किसी ने बोल रखा है. So I'll modify this and patent this somewhere else. So वही है यार, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, जस्ट डिसिप्लिन रहो, काम करते रहो, रिजल्ट जिस दिन आना है आ जाएगा. मेहनत करते रहो, अपने हाथ में जो है उसको करते रहो. निशांत भाई, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप बताओ. बिल्कुल, देखो इट इज नेचुरल बिकॉज हम इस एज में एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ में जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, कहाँ तो कोई शादियां कर रहा है, कोई अब्रॉड शिफ्ट हुआ है, कोई लाइफस्टाइल जी रहा है अपनी अपने तरीके से, लोग कमा रहे हैं, एंड हियर वी आर इन अ रूम सिटिंग. तो मेरा यही एक सिंपल फंडा रहा है ये रियलाइज करने का, जैसे प्लान बी की बात कही तो मैंने भी अपने आप को टाइम लिमिट दे दी थी, और इनफैक्ट मैं तो प्लान बी की तरफ बढ़ भी गया था. प्लान बी की तरफ बढ़ गया था, स्टार्ट भी कर दिया था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई हैव दैट इन मी. तो इफ आई रियलाइज दैट, फिर तो मेरे को कोई कैसे स्टॉप कर सकता है, कोई मेरे को कैसे बोल सकता है. डाउट्स तो आते हैं बिल्कुल. तो अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड तो फिर डिसिप्लिन वाली ही बात आ गई कि अब मैं कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना. डिसिप्लिन फॉलो करनी है. और दूसरा मुझे ये लगता है कि हम ये एग्जाम के प्रोसेस में बात करते हैं डिटैचमेंट की, तो मुझे ये लगा कि आप एग्जाम के रिजल्ट से डिटैच हो सकते हो कि बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ, आई विल राइज अप एंड आई विल डू इट अगेन, आई विल गिव इट अगेन. बट एग्जाम का जो कंटेंट है उससे डिटैच नहीं होना है. आपका पूरे टाइम माइंडसेट यही होना चाहिए कि मेरा क्या बच रहा है, मुझे किस तरह से जो है अब मेरे नोट्स सुधारने हैं, कौन सी टॉपर कॉपी से क्या सीखना है, क्या करना है. तो अगर हम एग्जाम में पूरे टाइम एंगेज रहेंगे, है ना, और अपना शेड्यूल ऐसा एयर टाइट बना देंगे कि आई हैव स्कोप ऑफ डूइंग दिस 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 ओनली, आई थिंक दैट विल टू अ लार्ज एक्सटेंट हेल्प आउट इन सॉल्विंग डिस्ट्रैक्शंस. एंड दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस है तो कॉन्शियसली उनको काटने पड़ेंगे. सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली बंद करना है अगर हम, या फिर प्रोडक्टिवली यूज करना है. यार नहीं हो पाता है तो बंद कर दो, कहीं और से लेके आओ, है ना. जैसे जैसे नहीं हो पाता था, मतलब ऑनेस्ट कॉल लो ना यार. honest call लो. I did something else. I used it productively for my own use. But I used it for value addition, ना कि रील देखने के लिए. So I think वहाँ पे आपको एक honest call लेना पड़ेगा. दूसरा मुझे ये लगा इस चीज में कि Donish, if you can continue, मतलब आई थिंक आई फंडामेंटली एग्री कि वो डिस्ट्रैक्शंस आपको बताने पड़ेंगे, आपको खुद से रियलाइज करने पड़ेंगे कि ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, एंड कॉन्शियसली टेक दैट कॉल कि मैं उस टाइम पे अपने आप को एंड कर रहा हूँ. लाइक अपनी हदें डिफाइन करो अपने हिसाब से, एंड बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आस्क फॉर योरसेल्फ, दिस इज समथिंग दैट यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन, एंड द कॉम्पिटिशन इज वेरी स्टिफ. सो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू एंड is becoming an obstacle in your preparation, just take that call immediately, right? Selection is important, and if you are preparing religiously, then you might as well be very honest to it. And beyond a certain point, yes, ठीक है, do indulge in it. Like हमारे भी 80% of the targets ही meet हो पाते थे, but we were also disciplined when we were taking breaks. वो breaks भी हमारे schedule में built in है कि कब हमें break लेना है, कब हमें दोस्तों के साथ hang out करना, और anything that we want to do to fresh our mind. वो भी important है, but उसके लिए भी discipline होके चलो, उसके लिए cadence establish करो, and then
plan it out very well for yourself. Be smart, be clever, and at the end of the day, it is you have to propel yourself. Ki yes, I have to come back to discipline. I have to come back to your discipline. What may, I'll just spend my time on the study table. I think that is the end of it. And I think it is very important to realize what kind of a person you are, so what kind of studies you can do. अगर मैं घर पे कंफर्टेबल हूँ, मैं लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, मैं दिल्ली आके डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, मैं लोगों के साथ नहीं पढ़ सकता, मैं ग्रुप स्टडीज नहीं कर सकता, तो अकेले पढ़ो. हाँ, Find your own personality पर्सनालिटी. यस and stick to that. right. कोई फोमो नहीं रखा. 100%. Peer pressure में तो बिल्कुल नहीं आना. 100%. 958 selections, 958 strategies. So I think on this note, I think we should end our discussion. We had a very pleasant talk. काफी कुछ अच्छे से कवर हो गया. If there is anything left, we'll come back again. Sure. Part 2. चलो. चलो, I had a great time as well, and I think this should help, provided कि you also keep an open mind when you're considering this. There is no one. Further doubts के लिए we have our Telegram channels. So you can always approach us. Always Yes. drop us a message. Okay. ठीक है. Let's have a thumbs up. Thank you.